वो जब एक्सपीरियंस एक क्लिक करता है आपकी पेज पे जाता है, आप उस पेज पे वहां पे आपके पास पूरी पॉसिबिलिटी है, आप उस कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हैं या आप उसका एक्सपीरियंस खराब कर सकते हैं। Hey guys, this is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a street car racer turned hotelier, now social media marketer and founder of Internet Moguls. Welcome to my channel. We always say that the shortest distance between two human hearts is always a story. You tell a perfect stranger a good story and you win a heart for life. So, in my own style, I'm going to give you my 5-second hero introduction and then we'll ask you to make your hero introduction and share it with everyone. Is that okay? Yeah, great. Okay. So, my name is Avi Arya, father of 2 girls, 6 dogs, husband to a superwoman, a street car racer turned hotelier, now social media marketer and founder of Internet Moguls. Gautam, over to you. This hero introduction story of yours, I've been listening from last, I think, more than one year. And Okay. the first time that I heard, that was in EBW Goa, where we met. Yes. Oh, right. Yes. So, okay. So, my name is Gautam. I come from a very small town, Udaipur, Rajasthan. Okay. I grown in a very small village in Udaipur district, Rajasthan. Okay. I'm the only kid of my parent, and I got married at the age of 16, and that's how journey started with the responsibilities and everything. And today I am a digital marketer. I run multiple e-commerce, and I help a lot of entrepreneurs. This is my story. Awesome. You said you got married at the age of 16. 16. Yes. Okay. Awesome. So, what do your children do? Yeah, that's again, it's a wonderful story again. My son, his name is Pankaj, and he has completed his master, and currently he's working in IT industry. He's working with MNC. And my daughter, her name is Maya. She's just completing her BSc in chemistry. Lovely. You must be very proud of their discipline and everything that they're achieved. पहले मैं आपसे एक दो motivation वाले सवाल पूछूंगा, then I'll get into the e-commerce thing, bit of thing. Sure. So, when you started, this was whenever many years ago, what was there in your mind कि इंडिया में क्या हो रहा है, मैं क्यों करूँ ये e-commerce versus digital? क्योंकि digital marketing में भी there are many aspects to it. There's not only digital marketing. There's not IT अलग है, ITES अलग है, अब Internet Moguls of Internet of Things अलग है. तो एक common ले आदमी कहता है यार इंटरनेट तो इंटरनेट है, अब उससे ज्यादा कितनी सारी चीजें बताओगे उसके अंदर. But internet, there's so many facets to this whole thing. So आपने अपनी फील्ड कौन सी चूज करी और कैसे चूज करी? So यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरी स्टोरी से और मेरी जर्नी से रिलेट कर पाएंगे, स्पेशली जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं या छोटे शहरों से बिलोंग करते हैं. बिकॉज मैं आपको अपनी मेन जर्नी के बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देना चाहता हूँ कि ये बात उन दिनों की है जब मैं स्कूल जाया करता था, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहा था. और वो एक छोटा सा गांव था जहाँ पे आप लोगों को पता होगा कि गांव में कच्ची सड़कें होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है, टेलीफोन नहीं होते हैं. सो मैं ऐसे गांव में रहता था. इट्स लाइक अ हॉलीवुड और मे बी बॉलीवुड स्टोरी, फिल्मी स्टोरी काइंड ऑफ, बट दिस इज द रियलिटी. आई वाज स्टेइंग लाइक दैट. एंड मेरा जो सराउंडिंग हुआ करता था वो ऐसा नहीं हुआ करता था कि हमारे जैसे आज हमारे फ्लैट में बाजू में कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई एडवोकेट है, कोई ये है, तो हमको इंस्पिरेशन अपने सराउंडिंग से मिलती है, तो हम 4 आइडियाज हमारे दिमाग में आते हैं. बट ऐसा मेरे साथ नहीं था. मेरे साथ में जो था वो ये था कि मेरे सराउंडिंग में सिर्फ गाँव के लोग रहते थे और सारे के सारे अनपढ़ हुआ करते थे. मतलब वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, और उस गाँव में ना तो कोई न्यूज़पेपर आता था ना कुछ. अच्छा. मैं जिस गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, इट वाज लाइक जो टीचर्स होते थे उनकी हार्डली क्वालिफिकेशन होती थी, वो ग्रेजुएट होते थे या अंडर ग्रेजुएट होते थे. अच्छा. हिंदी मीडियम, राइट. सो मेरे को जो सबसे पहली चीज समझ में आती थी कि मुझे बड़ा होकर टीचर बनना है. अच्छा.
and today I'm doing that. So I'm very proud of what I'm doing today. I'm teaching and I'm enjoying that. Okay. And यहाँ से शुरू हुई वो जो बीज बोआ है ना, वो ऐसा है कि जब मैं टीचर की सराउंडिंग में रहा तो मुझे हमेशा ये लगता रहा कि मैं कुछ भी करूं, मेरे इस आगे जर्नी में मैं बताऊंगा कि मैंने 15-20 सालों में जो भी अचीव किया है, मतलब मैंने बहुत सारे रोल प्ले किए हैं एज अ SEO guy, as a web designer, as a graphic designer, as a digital marketer, as a sales guy, ऐसे वेरियस कंपनी में अलग अलग रोल प्ले किए। और ये सारी स्किल्स जो है एक ही जगह से आई है, वो ये है कि आपने लर्न करना खत्म बंद कर दिया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और वहीं से मेरी जर्नी की शुरुआत हुई उस गवर्नमेंट स्कूल से, जहाँ पे मैंने सीखना शुरू किया। जो भी टीचर थे, जैसे भी थे, उनकी जो भी लेवल थी, बट मुझे लगा कि इससे अच्छा और कुछ नहीं मिल सकता है। तो जो मिला उसको अप्रिशिएट किया और वहां से आगे। हाँ, एक्सीलेंट। सो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, इट्स लाइक अ हिंदी मूवी स्टोरी, बट द थिंग इज कि हाउ मैं इतना आई एम वेरी पैशनेट अबाउट द फैक्ट दैट द इंटरनेट इज सच अ लेवलर। आज से ज्यादा टाइम पहले की बात नहीं है, मे बी 20 years ago एक बहुत बड़ी बात थी इंडिया में, शायद दुनिया भर में। मैं इस लेवल पे इस घर में पैदा हुआ हूं, मेरे घर में कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, वो इस लेवल पे है, और मेरे से ऊपर ये एक है, मतलब एक सिस्टम। मैं क्लास सिस्टम और कास्ट सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट देयर आर जस्ट लेवल्स। सबका जितना एक्सपोजर है, जितनी आपको इंग्लिश आती है, जितना उस लेवल पे आपके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, जिस स्कूल में आप गए हो, वो सब बहुत सही मुश्किल होता, उससे उसका महत्व होता था। आज मेरे ख्याल से उसका जीरो फर्क पड़ता है। उस दिन मैं देख रहा था एक 3-wheeler चलाने वाला आदमी YouTube चैनल पे लोगों को बता रहा है कि 3-wheeler का ध्यान कैसे रखता है भैया, उसका चक्का कैसे बदला जाता है, ऑल दैट। उसके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, उसको लोग देख रहे हैं कि भाई तू 3-wheeler कैसे खरीदा, क्या खरीद। देयर इज अ ड्राइवर जो एक गाड़ी चलाता है, वो बताता है कि भाई दिल्ली से राजस्थान वो फॉरेनर्स को लेके जाता था, वो इंडियंस को लेके जाता है, वो लोगों को बताता है गाड़ी। एक आदमी है जो मीरो कैब्स या कोई ओला कैब्स में कैसे नौकरी देनी है और ओला में पैसे कैसे बनाओ, उसके ऊपर चैनल बना के अब वो इतने पैसे बना रहे हैं थ्रू बिकॉज़ दे आर इन्फ्लुएंसर्स। एंड द इन्फ्लुएंसर और द गाय हु इज क्रिएटिंग वीडियोस, उसने कहा कि मेरे को इंग्लिश आने की जरूरत ही नहीं है, मैं स्कूल में गया हूं या नहीं गया हूं कोई पूछ नहीं रहा है, मेरे पीछे कोई सर्टिफिकेट नहीं लगा उससे। तो चाहे वो मेरा बच्चा हो या मेरे पिताजी हो 70 साल के, या मेरा ड्राइवर हो, या मेरे ऑफिस में लड़का जो है जिसको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उसका नाम है सोनू, या वो हो, आज हम सब एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड पे है, जिसमें जितना दम है, मैं कितने वीडियोस बना सकता हूँ, कितने लोगों को कर सकता हूँ, यूट्यूब है, आ जाओ। और जिसमें जितनी फायर है इन द बेली, वो इस ट्रॉफी को ले जाएगा। सो आपका क्या कहना, जैसे आपने इतनी देर पहले ये सब चीजें स्टार्ट करी और अब आप देख रहे हो कि एवरीथिंग इज बिकम सच अ लेवल प्लेइंग फील्ड। इन सब चीजों में, मैं आपके बिजनेस की तरफ आ रहा हूँ, इन सब चीजों में ई कॉमर्स का रोल कहाँ आता है? जैसे आपकी जर्नी रही है, आपकी स्टोरी, मतलब आपके वेबिनार्स में मैंने काफी बार अटेंड किया, तो आपने जहाँ पे स्टोरी बताई है कि आपने उन दिनों बिजनेस शुरू किया था जब सिफी का इंटरनेट लेकर के आप साइबर कैफे वालों को और वो सब करते थे और जो चीजें करते थे, ठीक उन्हीं दिनों में मैं भी एक्चुअली ये सब चीजें कर रहा था। और मैंने एक साइबर कैफे में जॉब करी उदयपुर में। तभी आपको सिफी नाम याद है, क्योंकि मैं सत्यम कहता हूँ, लेकिन सत्यम सिफी था वो, राइट? सो उदयपुर में एक साइबर कैफे में मैंने जॉब करी, और वो साइबर कैफे में उस समय मॉडेम कनेक्ट होता था, वो अलग सी एक आवाज करता था, मॉडेम की कनेक्शन की आवाज होती थी, ठीक है? राइट। और मुझे कंप्यूटर नहीं आता था बाय द वे, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन, मैं उस समय सिर्फ 10th पास था, बाय क्वालिफिकेशन में सिर्फ 10th पास था। और जब मेरी शादी हो चुकी थी तो ऑब्वियसली मुझे आई हैड टू मैनेज माय फैमिली एक्सपेंसेस एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई walk out from the home and I started finding some job or whatever opportunity I can get। तो मुझे मिला एक साइबर कैफे, जहाँ पे मैंने जाकर के देखा कि मैं वहां पे जो भी लोग आएंगे उनके टाइम नोट करूंगा कि कितने बजे आया, कितने बजे गया, कितने घंटे का, एक घंटे का उस समय 20 रुपए हुआ करता था, तो 20 रुपए में लेता था एंड वहां पे बैठ के ये सब करता था। और मैं खाली टाइम पे, जब कोई कस्टमर नहीं होता था साइबर कैफे में, तो एक भैया थे जो एक्चुअली में वहां पे सिस्टम और ये इंटरनेट और ये सब मैनेज करते थे। मैं उनको बोलता था कि ये भैया ये क्या है? वो बोलते थे कि देखो ये याहू मेल है, इसमें एक आईडी होता है और ऐसे हम ईमेल करते हैं, यहाँ पे याहू चैट होती है और बहुत सारी ग्रुप चैट होते थे उस समय। तो वो हम लोग
एज ए फन में मुझे उन्होंने सिखाया, मैंने खेला, मैंने वो सब किया, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द कंप्यूटर. So this is how my journey started with computer. I do not have any qualification, any sort of training program, any certification program in computers. And this is to all the people who are listening to Gautam's story. मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि गौतम ने जैसे अभी बताया कि याहू मेल होता था और याहू में उन्होंने सीखा क्या होता है खोलते. And by the way, recently he has been featured on the Yahoo News for an internet entrepreneur lifestyle thing. So that is a big journey. आपको पता नहीं था ये चीज है क्या. And this is a very big article for all of you people to see. मैं इसका link डाल दूंगा. Bhaskar, if you can just put the link in the comments, please. So this is a big achievement. So to all of you people who are thinking, because बहुत सारे लोगों को लगता है मैं entrepreneur हूँ, but यार ये सब चीजें मैंने कभी करी नहीं. तो there's always a beginning phase. Correct. So this is how my journey started from that cyber cafe, and I slowly started learning things about internet and कि भी इंटरनेट पे क्या क्या चीजें हो सकती है. So हम ई-कॉमर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं. तो मैं ई-कॉमर्स जैसा कि सब जानते हैं, इट्स अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, एंड अगर जो लोग ई-कॉमर्स पे काम कर रहे हैं उनको तो पता होगा. और मैं अपनी इस ई-कॉमर्स की जर्नी को बताने से पहले, उससे पहले मैं थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा. जैसा कि मैंने थोड़ी चीजें तो कवर कर ही दी है. मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि अगर किसी को ऐसा डाउट है कि ई-कॉमर्स शायद मेरे बस की बात नहीं, या मेरा मुझे नहीं हो सकता, या लिमिट डाउट है, सेल्फ डाउट होता है, या सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ होता है, जो भी होता है, उन सब लोगों के लिए मैं ये स्क्रीन मैंने बनाई है कि मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ. मेरा नाम गौतम है, मुझे लोग जीके के नाम से भी जानते हैं. एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली जिसमें मेरे पेरेंट्स दोनों एजुकेटेड नहीं है और वो अपनी साइन भी नहीं करना जानते हैं. मेरे कोई फैमिली ऐसी बैकग्राउंड नहीं है जिनसे मैं सीख सकूं कंप्यूटर या इंटरनेट या इंग्लिश, ऐसा कुछ भी नहीं था. एंड 16 साल की एज में शादी हो गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, 2 साल बाद बच्चे हो गए, और मैं अपनी जिंदगी की पहली लड़ाई लड़ने के लिए गांव छोड़ के उदयपुर गया, जहाँ पे मैंने साइबर कैफे में जॉब की शादी के तुरंत बाद. एंड वहां पे 2 साल काम किया उदयपुर में साइबर कैफे में. कुछ नहीं हुआ वर्कआउट. कुछ MLM कंपनीज के साथ काम किया, एंड MLM कंपनियों ने कुछ अपॉर्चुनिटी दी जहाँ पे मुझे थोड़ा सा टीचिंग ट्रेनिंग वाला एक्सेस मिला, जहाँ पे लोगों को मैं समझ पाया कि अगर मुझे मासेस में अगर लोगों को समझाना है, कैसे प्रेजेंटेबल बनना है, कैसे क्या करना है, तो कुछ चीजें वहां से MLM कंपनी से मैं सीख पाया. नो डाउट मैंने पैसे भी कमाए MLM से, बट एट द सेम टाइम मुझे ये सब चीजों में ज्यादा मजा आया. श्योर. बट कुछ MLM कंपनियां बंद हो गई. मुझे लगा कि अब वापस जीरो से शुरू करनी पड़ेगी जिंदगी. मैं अहमदाबाद आ गया, उदयपुर से अहमदाबाद आ गया. सो अहमदाबाद उदयपुर से उन दिनों लाइक 6 से 7 घंटे लगते थे 200-250 किलोमीटर का सफर में. सुबह से शाम हो जाती थी बस में आने के लिए. अब तो सिर्फ कार से जाओगे तो 2-2.5-3 घंटे में आप पहुंच जाते हो. सो मैं अहमदाबाद आया. अहमदाबाद में मुझे कोई कांटेक्ट नहीं था, मेरा कोई कहीं पे जान पहचान नहीं थी. मेरे एक अंकल थे जो किसी रेस्टोरेंट में काम करते थे. मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ पे क्यों आए, तुमको नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास तो रहने की जगह नहीं है, मैं तो खुद रेस्टोरेंट में रहता हूँ. अगर तुम यहाँ पे आए हो तो अपने लेवल पे कुछ करो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता. उन्होंने ओपनली मुझे ये बता दिया. मुझे सजेस्ट किया कि आप वापस चले जाओ. बट मैं अंदर एक अलग ही फायर थी कि मुझे था कि मुझे कुछ करना है लाइफ में. मतलब मैं मेरी फैमिली के ऊपर मैं आश्रित नहीं रह सकता. मेरी लाइफ है, मुझे अपनी लाइफ की प्लानिंग करनी है. सो वो चीज को देखते हुए मैंने अहमदाबाद में काफी इधर उधर धक्के खाए. मैं स्ट्रीट पे रहा, फुटपाथ पे रहा, काफी दिन मैंने रोड साइड में सोया हूँ. मेरे पास पैसे नहीं होते थे खाना खाने के लिए. मैं पार्ले जी का बिस्किट खा करके पानी पी के रात निकाल देता था. नेक्स्ट डे पूरा दिन घूमता था, कहीं पे जॉब मिल जाए, कहीं पे कोई जान पहचान मिल जाए, कहीं पे कुछ इंटरव्यू हो जाए, कहीं पे कुछ काम मिल जाए. ऐसे मैंने कितने दिन निकाले अहमदाबाद में. रात को मैं सोता था, पुलिस की गाड़ी आती थी, मुझे डंडा मारते थे कि बोलते थे ये बेंच है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पैसेंजर्स के लिए, ये आपके सोने के लिए नहीं है. वो मुझे डंडा मारते थे, मैं उठता था, उनसे माफी मांगता था, गाड़ी चली जाती थी, मैं वापस आके सो जाता था. सो इट्स अ फन, बट दिस इज हाउ आई हैव बीन गोन थ्रू. बट एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मैं स्ट्रगल बता करके आपको ये नहीं बताना चाहता कि लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल है. मैं बोलना चाहता हूँ कि लाइफ बहुत मजेदार है. मैंने एंजॉय किया अपने स्ट्रगल को. वेरी गुड. क्योंकि
जब तक आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट लेवल का जो जो है ना, क्या कहते हैं, डर के बाद जीत है। राइट। तो वो आप नहीं क्रॉस कर पाओगे तो आप जाओगे ही नहीं वहां पे। तो मैंने वो क्रॉस किया, और जो मुझे मिला, जैसा मुझे मिला, मैंने उस चीज को एंटरटेन किया, लिया और एक्सेप्ट करके आगे बढ़ा। मैंने कैंटीन की जॉब मुझे मिली। एक कंपनी के बेसमेंट में कैंटीन हुआ करता था, जहाँ पे 600 रुपये पर मंथ मुझे सैलरी मिलती थी, जहाँ पे मैं लोगों को चाय सर्व करता था, टेबल पे लेके जाता था चाय, किसी ने चाय डोल दी, कपड़े से साफ करता था, कप प्लेट धोता था, सर्व करता था, पूरा दिन यही काम था। 5th फ्लोर का बिल्डिंग था, वहां पे मेरे लिए लिफ्ट अलाउड नहीं था, मुझे लिफ्ट नहीं, दिन में कम से कम 50 बार मुझे सीढ़ी से चाय लेके जाना होता था। ऑल एक्सेप्टेड एंड डन दैट, बीन देयर मेनी अ टाइम्स, यू नो। अब क्या होता है कि आपकी जो जितना बुरा होना था आपके साथ हो गया, आप सारे लेवल क्रॉस कर लिया, आपने फुटपाथ पे सो लिया, आपके पास पैसे नहीं है, आप 600 रुपये में काम कर रहे हो, आपकी फैमिली, मुझे जब मेरी फैमिली कॉल करती थी तो मुझे बोलते थे कि बेटा आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। लैंडलाइन पे कॉल आता था, मैं बोलता था कि पापा मैं अच्छा हूँ और मैं सब कुछ ठीक है, आप बोलो, आपको कुछ पैसे चाहिए तो मैं भिजवाता हूँ, मैं ये बोलता था, जबकि मेरे पास खुद के पास पैसे नहीं होते थे। राइट। लेकिन मैं ये इसलिए बोलता था कि मैं उनको ये नहीं दिखाना चाहता कि मेरे पास पैसे नहीं। समझ गया। एंड दिस इज हाउ आई बीन गोन थ्रू ऑल द बैड टाइम्स। ये सब हुआ, और उसी कंपनी में आपको मैं बता दूं, एक बंदे ने आके मुझे बोला कि यार गौतम, तुम ठीक ठाक बात कर लेते हो, ठीक ठाक तुम पढ़े लिखे दिखते हो, क्या कर रहे हो तुम। तो मैंने दिखाया, मुझे साइबर कैफे में मैंने काम किया, मुझे बेसिक कंप्यूटर आता है, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी है तो मुझे बताना। एक दिन मैं चाय देने के लिए गया ऊपर, और मुझे उन्होंने बोला यार ये सीडी राइट नहीं हो रहा, तुम देख सकते हो। मैंने सीडी देखा, उन्होंने सीडी उल्टा रखा हुआ था, वो सीडी को मैंने सीधा किया, उनको सीडी बर्न करके दे दिया। एंड ही वाज वेरी हैप्पी बिकॉज ही हैज टू नो, कहीं उनको जाना था अर्जेंट में, उनको सीडी दे दिया, वो बॉम्बे जाने वाले थे, उनका हो गया काम। नेक्स्ट डे संडे था, नेक्स्ट डे उसके बाद मंडे को आए, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर दी, बोला कि तुम कैंटीन का काम छोड़ो, तुम यहाँ बैठो। एंड दैट वाज माय कॉर्पोरेट फर्स्ट जॉब, जैसे मैं वहां पे डेटा एंट्री के लिए लगा, एंड दिस इज माय जर्नी स्टार्टेड। एंड उसके बाद यूके गया 2008 में एक कंपनी के थ्रू। एंड बाय द वे, जो मैंने जो पहली जॉब मिली थी वो इंडिया में उस समय एक बड़ी एडवर्टाइजिंग एजेंसी कही जाती थी, आज भी उनका काफी नाम है, उस कंपनी का नाम है मुद्रा कम्युनिकेशन, डीडीबी मुद्रा नाम है उनका। सो डीडीबी मुद्रा में मैं ये काम, मेरा पहली जॉब लगी थी ओखला में। मुद्रा कम्युनिकेशन, डीडीबी मुद्रा। ओखला में ऑफिस है शायद उनका एक। हाँ, अच्छा। अहमदाबाद में है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है, सब जगह पे है, और काफी वर्ल्ड भी तो है। सो एंड फिर मैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनियों के फोन आने लगे, जैसे जैसे स्किल बढ़ने लगी, जैसे जैसे आपका रिज्यूमे बढ़ने लगा, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग मी, पीपल स्टार्टेड नो इनवाइटिंग फॉर इंटरव्यू। मैं ऐसे करते करते यूके तक पहुंच गया, 2008 में यूके चला गया। और अब आप देखो, मैं यूके गया तो मेरी डिग्री के बेसिस पे नहीं, मैं गया यूके अपने स्किल के बेसिस पे, क्योंकि मेरे पास तो क्वालिफिकेशन थी। लवली, अमेजिंग, आई लव दैट कि पीछे सर्टिफिकेट नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, द स्किल्स दैट लाइफ टीचेस यू, करेक्ट, दैट कैन टेक यू टू द, ये दिस आई लव दिस मैसेज कि जिंदगी इतनी चीजें सिखाती है और आज आप उस स्किल को लेके आप अपनी जिंदगी बना सकते हो। एनीवे, ओवर टू यू, बैक टू यू। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सो ऐसे करते करते मैं यूके से वापस आया अहमदाबाद में, इधर उधर मैंने काफी कंपनियों में काम किया, काफी कंपनियों ने मुझे काफी अच्छी अच्छी पोजीशंस पे जॉब ऑफर करी। एंड ये सिलसिला चलता रहा 2015 तक। एंड आपको मैं बता दूं, 600 रुपये से मैंने अपना करियर शुरू किया था कैंटीन में, और वो जब मैंने 2015 में जब मैंने जॉब छोड़ी थी, वो 1.5 लाख के आसपास की सैलरी थी पर मंथ मेरी, जब मैंने जॉब डिसाइड किया था कि नाउ आई वांट टू डू समथिंग माय ओन। 2015 में मेरी जॉब छोड़ी, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए मैं ऑफिस ढूंढ रहा था। फैमिली अगेंस्ट थी, नो डाउट, उनको लगता था कि यार 1.5 लाख की जॉब छोड़ के आप कौन छोड़ेगा 1.5 लाख। बट मेरे लिए एक अंदर से एक सैचुरेशन पॉइंट आ चुका था, क्योंकि मैं 2002 से 2015 तक, मतलब 13 साल मैंने ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स में जॉब कर ली थी, काफी क्लाइंट्स, इंटरनेशनल क्लाइंट्स, आउटसोर्सिंग कंपनियां, आईटी कंपनियां, ये सब में काफी काम करके मुझे ऐसा लग गया था कि जहां तक मुझे जाना था ये हाइट क्रॉस कर, आगे 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 जाने का टाइम आ गया, राइट। सो दिस इज वेयर
मैंने अपनी खुद की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी शुरू की जिसका नाम रखा रॉकेट साइंस आइडिया, एंड दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड, द नेक्स्ट फेज ऑफ माय लाइफ. Lovely, fantastic. All of you people, guys, I think we learned a lot from this journey. मेरे को जो समझ आ रहा है ना कि आप ग्राउंड फ्लोर पे थे और ऊपर वाले फ्लोर पे चाय पीना, ऊपर अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन आपको वो क्या कहते हैं श्रम दान करना पड़ा कि आपको 50 चक्कर रोज, 15 चक्कर रोज, लेकिन वो मौका है कि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिले. एब्सोल्युटली. तो बट अपॉर्चुनिटी वही थी, लाइक 15-20 फुट ऊपर फ्लोर पे उसी बिल्डिंग में एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी वही थी, लेकिन वो रास्ता लंबा था ऊपर पहुंचने का. एक्सीलेंट. सो दैट्स व्हाट मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस. यू अपॉर्चुनिटी वही है, उसको ढूंढ के वहां तक रास्ता पहुंचाने में टाइम लगता है. और उसमें हम जो है बहुत बार मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ, आसान नहीं है लेकिन हम फिर भी हिम्मत हार जाते हैं, इस वजह से आगे नहीं पहुंच पाते. एब्सोल्युटली. ओके फिर आगे. सो अपना बिजनेस शुरू किया और बिजनेस में मैंने काफी हाथ पैर मारे, एंड लकीली मुझे एक प्रोजेक्ट मिल गया, कुछ रेफरेंस. कुछ एक प्रोजेक्ट मिल गया मुझे, और वो बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया. पहला प्रोजेक्ट भी ऐसा मिला जिसमें मुझे असाइनमेंट मिला था कि आपको सेल्स एंड मार्केटिंग करनी है, एंड एक एग्जीबिशन हो रहा था अहमदाबाद में. एग्जीबिशन करना चाहती थी, एक एसोसिएशन थी जो एग्जीबिशन करना चाहती थी, और एग्जीबिशन जो हो रहा था वो था फोटो वीडियो वाले जो लोग होते हैं, जिनके एसेसरीज होते हैं, कैमराज होते हैं, वो सारे मिलके एक एसोसिएशन था जो नॉर्मली फोटोग्राफर्स का एसोसिएशन था. उनको एक एग्जीबिशन करना था. नॉर्मली वो वर्कशॉप वगैरह तो करते थे, उनको एग्जीबिशन करना था. एंड मुझे अपॉइंट किया गया कि आपकी डिजिटल मार्केटिंग है. उसमें डिजिटल मार्केटिंग का क्रेज थोड़ा बढ़ रहा था मार्केट में, एंड 2015 के बाद बता रहा हूँ मैं आपको. एंड उस बिजनेस को मैंने लिया, एक्सेप्ट किया. जो भी मुझे मिल रहा था, मैंने ये नहीं देखा कि मुझे कम चाहिए, ज्यादा चाहिए. मैं उतना था नहीं मेरे दिमाग में कि मुझे इतना चार्ज करना चाहिए, मुझे प्रोफेशनली ऐसे बिहेव करना चाहिए. मैंने ऐसा नहीं किया. मैंने देखा कि मेरे पास पहली अपॉर्चुनिटी आई है, इसको मुझे करना है, और जो भी हो ठीक है मुझे करना है. और मुझे सबसे बड़ी बात इस चीज की थी मुझे कि मुझे अपने आप को टेस्ट करना है कि मैंने 15 साल जो कॉर्पोरेट में काम किया, मैं कितने गहरे पानी में हूँ. अब मुझे अपने लिए काम करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है. तो मेरी स्किल यहाँ पे टेस्ट होगी, रियली में टेस्ट होगी. तो ये चीज मुझे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी रादर देन द मनी जो मैं उस प्रोजेक्ट से कमाने वाला था. राइट. एंड उस प्रोजेक्ट में हमने काफी काम किया. मैंने एक टीम डेवलप करी और सेल्स किए, कॉल किए, एग्जीबिशंस के स्टॉल बेचे, ऑनलाइन प्रमोशंस किए, लिस्ट बिल्डिंग की, ईमेल मार्केटिंग की, फोन कॉल्स किए, पेमेंट कलेक्शंस किए, ट्रैवलिंग किए, मीटिंग्स की, बहुत सारी चीजें करी. एंड बड़े बड़े स्पॉन्सर्स लेके आए, कैनन, सोनी, बड़े बड़े स्पॉन्सर्स लेके आए, और वो इवेंट को इतना सक्सेसफुल किया कि हमारा 3 दिन का इवेंट था अहमदाबाद में, एंड वी गैदर्ड 26,000 पीपल. वहां पे जो वॉक इन हुआ था वो 26,000 पीपल का हुआ था. सो दैट वाज, मेरा दिमाग वो हो गया कि हमारे पास कैपेबिलिटी है, हमारे पास स्किल है, वो वहां पे प्रूव हो गया. एंड ऑफलाइन इवेंट 26,000 का. यस, 2015 में ये ऑफलाइन इवेंट किया था हमने. एंड दैट इज हाउ आई रियलाइज कि नहीं, हम राइट ट्रैक पे हैं. नो मैटर व्हाट मनी वी आर गोइंग टू मेक, बट ट्रैक इज एब्सोल्युटली राइट. हमने कॉम्बिनेशन यूज किया था कि ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, डिजिटल एंड ऑफलाइन, सब कुछ करके हमने ये काम किया था. एंड देन वहां से जर्नी शुरू हुई. फिर मैंने BNI ज्वाइन किया, फिर लोगों को ट्रेनिंग देना शुरू किया, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, यूनिवर्सिटीज में जाकर के लोगों को सिखाना शुरू किया. एंड देन कॉन्टेक्ट बिल्ड होते गए ना. आपने एक बहुत ज्यादा मेरी टीम के लिए और मेरे लिए एक चीज बहुत मुश्किल खड़ी कर दी है, क्योंकि अभी हम 2100 लोगों का वेबिनार कर रहे हैं कल, और हम बड़ी खुशियां मना रहे थे इस बात के ऊपर कि हमने 2100 लोगों का वेबिनार किया है. 2021 में बैठ के हम 2100 लोगों का वेबिनार करके बहुत शोर मचा रहे हैं इंटरनेट पे, और आप 2015 में 26,000 लोगों का ऑफलाइन इवेंट कर चुके हो. आई थिंक अभी बड़ी सीरियस मीटिंग होने वाली है मेरे ऑफिस में मंडे को. It all teamwork, absolutely. जो आप हमें But you've raised the bar. For me personally, you've raised the bar, because I'm only right now for the last 20 seconds I'm thinking 26,000 is my new number, and I'm going to. मैं आज आपको promise करना चाहता हूँ, before the end of this year, I'm going to do something 26,000. And absolutely it is possible, because आप भी बोलते हैं कि इंटरनेट पे सब कुछ possible. 100%. नहीं, अब मेरा next number is 26,000. वो नहीं निकलेगा मेरे माइंड से, मैं आपको बताऊंगा कि ये हो गया. वेरी नाइस, अमेजिंग. चलिए मैं इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि एक और फैक्ट्स उसी
इवेंट का, उसी एग्जीबिशन का मैं शेयर करता हूँ. We generated within 3 months of marketing and sales activity, we generated 2 crores of revenue. Wow. With a team of only 5 people. So that was a bulb-on moment for me, a different realization. Bulb-on moment. I love those bulb-on moments. Fantastic. So, matlab, it was a great team. Absolutely, it was nothing like me and my team had done that. It was fully supported by the exhibition, the body, like जो उनके president थे, secretary थे, जो उनकी जो team थी. There were a lot of people involved, but जब काम करने निकलते हैं और पूरा जोश होता है तो लोग सपोर्ट करने आ जाते हैं और उनको एक्नॉलेज करना भी बहुत अच्छी बात है. लेकिन किया तो आपने, स्टार्ट तो आपने किया था, राइट? तो एवरी इनवॉइस जितना भी जनरेट हुआ, सभी इनवॉइस पे मेरे सिग्नेचर है, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, आज भी हमारे पास रिकॉर्ड में है. सो दैट इज वी डिड इट. एंड ऐसे शुरू हुई चीजें. और फिर मैंने अपना जो एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग जो बिजनेस था उसको मैंने थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया एंड स्टार्टेड फोकसिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स की. भाई मैं जो जनरलाइज नहीं करना था, मुझे सब कुछ जो भी आ रहा है अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं कि मुझे पैसे कमाने हैं या बिजनेस करना है, ग्रो करना है तो कुछ भी मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं. मैंने देखा था कि फोटो वीडियो में मेरे को इंटरेस्टिंग लग रहा था एंड वहां पे मेरा पहला प्रोजेक्ट हुआ. तो आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन की जितने भी कॉन्टेक्ट बने थे उस एग्जीबिशन के अंदर, उनको मैं फिर बाद में पोस्ट एग्जीबिशन में हमने सभी कंपनियों को कांटेक्ट किया. मैंने उनके साथ मीटिंग फिक्स की प्राइवेटली, उनके साथ मीटिंग किया, उनको ऑफरिंग दी, उनको सोशल मीडिया मार्केटिंग, उनको वीडियो एडिटिंग, उनको उनके जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, उनके जो भी उनकी सेल्स मार्केटिंग की एक्टिविटी, उनको हमने थोड़ा सा डिजिटलाइज करके उनको हेल्प करने का सपोर्ट किया. सो ऐसे करते करते कारवा बढ़ता गया, चलता गया, टीम बिल्ड होती गई. एंड वी रियलाइज थोड़े दिनों के बाद, मतलब 6 महीने 1 साल के बाद रियलाइज किया कि चीजें इतनी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई थी क्योंकि बहुत सारी एजेंसीज खुल रही थी लोकल, और बहुत सारा हम फ्रीलांसर्स के साथ भी वो कर रहे थे, कॉम्पिटिशन हो रहा था. सो प्राइस, मतलब मार्केट में किसी चीज का कोई 5,000 चार्ज कर रहा है वेबसाइट का, हम 50,000 चार्ज कर रहे थे. मतलब इतना डिफरेंस कैसे हो रहा है जी. सो ये हमेशा से रहने वाला है. बट देन देयर इज ऑलवेज अ नीड. आई मीन क्वालिटी कस्टमर हमेशा से रहने वाले हैं और आपको रेगुलर कस्टमर भी हमेशा से रहने वाला है. सो इट इज अप टू यू कि आपको कैसे फिल्टर करना है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी. Great message. Sorry to interrupt, but this is a great message. I was talking to Vaibhav yesterday from one of our members over here. 5,000 रुपए की भी वेबसाइट बनती है और 50,000 रुपए की भी वेबसाइट बनती है. जैसे आपने कहा, अच्छे कस्टमर हमेशा रहेंगे. द नीड ऑफ द कस्टमर, क्या उनको क्या वैल्यू मिलती है, एब्सोल्युटली उनकी जिंदगी में क्या चेंज होता है, और वो उस वैल्यू के आपको पैसे देंगे. अगर आप इस बात से डर जाओगे कि सारी दुनिया तो 10,000 में वेबसाइट बना रही है यार, मेरी वेबसाइट एजेंसी, किसी भी बिजनेस में कोई भी प्राइस इज डिटरमिन्ड बाय वैल्यू ऑफ दैट द मार्केट इज विलिंग टू पे फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन दैट यू ब्रिंग इन द कस्टमर. एंड अदरवाइज प्राइस से कोई डरने की बात नहीं है. सो थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दैट अप. या सो दिस इज ऑल. आपने अच्छे से इसको इलेबोरेट किया. मतलब मैं तो अपनी जर्नी के हिसाब से बता रहा था, बट दिस इज व्हाट आई फेल्ट कि हमेशा कस्टमर होते ही हैं. इट इज अप टू यू कि भाई आपको क्या दिखता है. आपको वो कस्टमर दिखते हैं जो पैसा नहीं देना चाहते हैं, या आपको वो कस्टमर दिखते हैं जहां पे आप वैल्यू ऐड कर सकते हो. मनी इज यू कैन एनी टाइम. जिस कस्टमर के पास अगर आपने वैल्यू, जिसको वैल्यू देती, वो पैसा कभी भी नहीं पूछेगा कि क्यों कम ज्यादा चार्ज कर रहे हो आप. वो बोलेगा कि आप मुझे और वैल्यू दो, मैं आपको और देता हूं. आप हाउ यू सी इज एवरीथिंग. आप किस तरीके से दुनिया को देखते हो, क्या ढूंढने निकलते हो, आपको वही मिलता है. आप जो ढूंढने निकलते हो आपको वो मिलता है. आप जो ढूंढने निकलते हो वो आपको मिलता है. आई एम सच अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट. दैट इज व्हाई we start with meditation, we do lots of things just because we clean the slate and we start with a belief ये हो सकता है. because आप जब आपको लगता है हो सकता है, तब आप उसके बाद जो एक्शन लेते हैं वो उस सोच से लेते हैं, यार ये तो हो सकता है. मैं जब आप ढूंढने, when you say यार मैं सपने 100 लोग हैं आज हमारे साथ, और मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आप कल सड़क पे निकलते हैं कहीं, तो लाल गाड़ी आपको शायद पता नहीं कितने दिनों में दिखी कि नहीं, लेकिन कल आपको लाल गाड़ी जरूर दिखेगी. बिकॉज सबकॉन्शियसली आई पुट दिस इनटू योर माइंड राइट नाउ, और आपको लाल गाड़ी दिख जाएगी. सो सबकॉन्शियसली व्हेन वी पुट इनटू आवर माइंड दैट आई एम लुकिंग फॉर दैट, वो वही था, पहले भी था, कोई जादू नहीं हो रहा, वो पहले भी वही था. द माइंड जस्ट सिंगल्स आउट दैट पर्सन एंड दैट अपॉर्चुनिटी कम्स इनटू योर लाइफ. फैंटास्टिक. थैंक यू फॉर टेलिंग अस दैट हुआ है आपके साथ. जी सर. सो उसके बाद कुछ लोगों ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया. लोगों ने
अप्रिशिएट करना शुरू किया अपने काम को। काफी लोग आए गए जिन्होंने कुछ अवार्ड्स दिए, कुछ सर्टिफिकेट्स दिए, कहीं कहीं पे इनवाइट किया एज अ स्पीकर, ग्लोबल डिजिटल मार्केटिंग फोरम में इनवाइट किया, अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग कॉर्पोरेट इवेंट्स में इनवाइट किया टू शेयर माय नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। सो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड। लवली। एंड अभी हम ई कॉमर्स शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं थोड़ा सा कि अभी मेरे कुछ आर्टिकल पब्लिश हुए हैं रिसेंटली, देख सकते होंगे आप, इन सभी न्यूज पोर्टल्स में आए हैं। एंड अभी हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है ई कॉमर्स की, करीब 2500 लोग उसमें हैं, जो फेसबुक पे एक ग्रुप है। वो मैं आपको बाद में एंड ऑफ दिस हमारे डिस्कशन के लास्ट में मैं आपको कुछ लिंक शेयर करूंगा, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो हमारा मेन पॉइंट यहाँ पे आ गया। सो यू कैन स्टार्ट ई कॉमर्स बिजनेस एंड अर्न 1 to 2 lakh रुपीज एज अ साइड हसल। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, अगर जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर आपको लगता है कि अब हम सब जाग गए हैं। हाँ, सो ये एक स्लाइड जो आपने दिखाई है, अब हम सब जाग गए। Yes, we believe. How many people believe, guys? How many people believe that it's possible? Awesome. Let's do it. So 10 steps of building an e-commerce business according to my proven method, which I share to my students and I also follow myself for my every e-commerce website जो मैं शुरू करता हूँ, उनमें से ये 10 चीजें मैं फॉलो करता हूँ। वो क्रिस्प है, मैं आपको उस पर डिटेल में लेके जाऊंगा। अभी सिर्फ आपके लिए ग्लांस के लिए बता दूं, एक बिजनेस माइंडसेट होता है जो सर हमेशा बताते रहते हैं अपने वेबिनार में और काफी ट्रेनिंग्स में और काफी वीडियोस में बताते रहते हैं। वो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट करता है। ये सारी चीजें नीचे वाली जो है ना, वो नहीं होगी तो चलेगा, लेकिन वो माइंडसेट होना ही चाहिए 100%। फिर फाइनेंस, कोई भी बिजनेस हम कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जैसे अपने सेल्फ इन्वेस्टमेंट में या कुछ सीखने में या कुछ चीजें करने में हमेशा फ्री के चीजें ढूंढते हैं, मतलब अपना फाइनेंस को यूज नहीं करते हैं, या इन्वेस्टमेंट करने की जहां बारी आती है वो खर्च नहीं करते हैं। सर आई वांट टू आस्क यू कि अगर आपको अगर कोई चीज फ्री मिल रही हो, कैन यू बाय ओवर अ फ्री थिंग? वुड यू बाय अ पेड थिंग? बहुत सारी फ्री चीज लेने के बाद ये मैंने देखा कि ना मेरी तरफ से उस चीज में इन्वेस्टमेंट होगी और ना उन्होंने मेरे में कुछ इन्वेस्ट किया। जैसे अभी मैं थोड़े दिन पहले हमारे कुछ मेंबर से बात कर रहा था कि हाउ डू वी इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ आवर कस्टमर्स। हमारे जो मेंबर्स हैं, जो यहाँ 100 मेंबर्स आज आए हैं, ये लोग सब अपने क्लाइंट्स के साथ काम करते हैं। तो मैं इनके साथ 1-on-1 कॉल करता हूँ और एक 1-on-1 कॉल में उन्होंने पूछा कि मेरे कस्टमर का सक्सेस रेट में कैसे बढ़ाऊं। तो आई सेड इंक्रीज द प्राइस एंड द इन्वेस्टमेंट। जैसे वो मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ उसका सक्सेस रेट कैसे बढ़ाऊं। मैंने कहा इंक्रीज द प्राइस। When you increase the price, if I have taken, मेरे माँ बाप ने अगर लोन लिया है मेरे को कॉलेज भेजने के लिए या मेरे को कनाडा भेजने के लिए या कुछ भी मेरी जिंदगी में अगर मैंने करने के लिए इन्वेस्ट किया है, जिससे मुझे थोड़ी दर्द हुई वो पैसे निकाल के देने में, तो उसमें मैं अपना जो कोच है उसका पार्टनर हूंगा। मैं 50% गेम लेके आऊंगा, 50% वो लेके आएंगे, हम कुछ करेंगे। कोई चीज सस्ती या फ्री होती है उसमें कोई पार्टनरशिप ही नहीं है, there's no investment. So I 100% agree. Investment has to be, थोड़ा सा दर्द होना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, एंड तब जाके आप उसमें रिजल्ट में पूरी कोशिश करते हैं। So I totally agree with you on that. So ये भी पॉइंट पे हम बात करेंगे आगे जी। So तीसरा पॉइंट है हमारा बिजनेस रजिस्ट्रेशन। कोई भी बिजनेस करना है तो आपको लीगल फॉर्मेलिटीज करनी ही होती है। ऐसा नहीं है कि आप चोरी छुपके कुछ बिजनेस कर रहे हो, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हो। आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन करना है पब्लिकली, आपका एक कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, आपका एड्रेस होना चाहिए, एवरीथिंग हैज टू बी देयर प्रॉपर। ई कॉमर्स में कुछ अलग रजिस्ट्रेशन होती है या सेम? सी बात करेंगे हम सर इस पर, लेकिन नॉर्मल बिजनेस रजिस्ट्रेशन इज अ बिजनेस रजिस्ट्रेशन। सो आपको सीए के पास जाके जो करना है वो तो करना है जी। फिर आपका आ गया स्टोर बिल्डिंग, आपकी ब्रांड आइडेंटिटी। ये दो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप मार्केट में पहला कदम रखोगे तो वो बेकार हो जाएगा अगर ये चीज नहीं है तो आपकी। फिर है आपके कंप्लायंसेस हैं, कुछ पॉलिसीज हैं, मतलब कस्टमर आपके पास आता है, उसको कुछ नहीं पता है, उसने प्रोडक्ट का फोटो देखा या प्रोडक्ट देखा और उसने बाय कर लिया और उसको कल उठ के पसंद नहीं आया तो अब क्या करेंगे। सो देयर हैज टू बी अ सर्टेन गाइडलाइंस फॉर द कस्टमर्स एंड फॉर योरसेल्फ एज वेल, कि भाई आप कैसे फॉलो करते, कैसे ऑपरेट करते हो। देयर हैज टू बी कंप्लीट सिस्टम। फिर आपके पास वेंडर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, बिकॉज बिजनेस इज ऑल अबाउट टीम।
ठीक है, आप अकेले कुछ भी बिजनेस में कुछ नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट आपके वेंडर्स होंगे, आपके सप्लायर्स होंगे, आपके जिनके साथ आप डे टू डे बेसिस पे काम करते हैं, कहीं से कुछ माल ले रहे हो, कहीं पे कुछ दे रहे हो, कहीं से कुछ खरीद रहे हो, कहीं पे कुछ अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, तो वो आपको सप्लायर्स और वेंडर्स कैसे बनाने वो हम आगे बात करेंगे। फिर है प्रोडक्ट सिलेक्शन। जब भी आपके पास कोई प्रोडक्ट आते हैं जो आप बेचना चाहते हैं, वो कौन से प्रोडक्ट हैं जिनको आप बेचेंगे और कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप रिजेक्ट कर देंगे, जिनको नहीं बेचेंगे। फिर आगे मार्केटिंग ऑटोमेशन, जो आई एम श्योर अगर जो अभी सर के साथ में जो लोग हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन तो बहुत कुछ समझते होंगे आई गेस, ठीक है। और यहाँ पे मैं इस बात को बोलना चाहूंगा कि मार्केटिंग ऑटोमेशन पूरे इस बिजनेस मॉडल में 10 पॉइंट है। जैसे कस्टमर सपोर्ट हो गया, कस्टमर सपोर्ट बहुत सारे लोग ना अटेंशन नहीं देते, ध्यान ही नहीं देते कस्टमर सपोर्ट का, वो सोचते हैं कि बस पैसा आना चाहिए, बिजनेस चलना चाहिए, ठीक है। एंड लास्ट है टेस्टिंग। ये 10 पॉइंट है जिसको अपन डिटेल में बात करेंगे। सो माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, अगर आप रियल में एंटरप्रेन्योर हैं, आप बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो आप बिजनेस में अच्छा कर पाएंगे। अगर आपका एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब अगर आपको पता हो तो और अच्छी बात है। और मैं आपको इसका थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब एक सिंपल तरीके से मैंने जो मुझे समझ में आया वो ये, कहीं से मैंने उठाया था ये, कि साउंड क्लोज टू संस्कृत वर्ड दैट इज कॉल्ड अंत प्रेरणा। एंड अंत प्रेरणा का मतलब होता है सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल मतलब संधि विच्छेद करूं, इसको है ना अलग अलग कर दूं, अंत का मतलब फेवरेट वर्ड संधि विच्छेद। जी, संधि विच्छेद अगर मैं इसको करूं, अंत का मतलब किसी चीज का अंत ना हो, और प्रेरणा ऐसी जिसका अंत ही ना हो, उसी को बोलते हैं अंत प्रेरणा। क्या बात है, क्या बात है, ये तो कभी भी नहीं सुना मैंने। ठीक है, ये मेरा इट्स माय वर्जन ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस वर्ड। बाकी अंत प्रेरणा, अंत प्रेरणा, अंत मतलब अंदर से जो प्रेरणा निकलती है वो, हाँ, जो खत्म होने वाली, कभी कभी खत्म नहीं होने वाली है वो प्रेरणा, क्योंकि आपके अंदर से आपको जब तक वो आप एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल नहीं बनोगे तब तक वो खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि वो चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। अगर वो स्पिरिट आपके अंदर है तो आपका सही माइंडसेट है, आप बिजनेस में आप आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। बहुत बढ़िया। अगर आप चैलेंजेस नहीं ले सकते तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं, आप फेलियर नहीं ले सकते तो आप एंटरप्रेन्योर नहीं। सो आई होप लोगों को ये बेसिक समझ में आ गया होगा कि एंटरप्रेन्योरशिप और माइंडसेट क्यों हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 100%। ठीक है, अब फाइनेंस और बजट की हम बात कर रहे थे। अब देखिए, बिजनेस ऐसा होता है कि हम शुरू से जानते हैं कि कोई भी बिजनेस फ्री में नहीं होता, लेकिन हमारे इंडिया में ना कुछ ऐसी माइंडसेट होती है, जैसे कि मानो कि किसी ने बिजनेस लोन लिया 1 लाख रुपए का, तो वो क्या करता है, पहले 50,000 तो साइड में रख देता है अपने सेफ्टी में, बचे 50,000 होते हैं ना, उसमें से दिखता है कि देखो मैं माल भी ले आऊंगा, मैं दुकान भी खोल दूंगा, मैं सारी चीजें मैनेज कर दूंगा, लॉजिस्टिक भी कर दूंगा, अपने एम्प्लॉय को भी पैसे दे दूंगा, और इसको ये 50,000 को मैं घुमाता रहूंगा। राइट। और वहीं पे क्या होता है कि शॉर्ट ऑफ मनी होती है, बट वो रियलाइज नहीं करता, वो सोचता है कि नहीं इसमें से चलाओ, इसमें से चलाओ। वो तो जो हाफ 50,000 बचा है ना, वो ऐसा सोचता है कि ये बैकअप मनी है। और अगर इसी चीज को अगर आप अमेरिकन स्टाइल से देखेंगे तो अमेरिकन लोग ये करते हैं कि अपना जितना भी बजट लिया होता है उसको पूरा अच्छे से एलोकेट करते हैं कि मार्केटिंग में कितना जाना चाहिए, प्रोडक्शन में कितना जाना चाहिए, टीम में कितना जाना चाहिए, सेल्फ एजुकेशन में कहाँ पे जाना चाहिए, मेंटरशिप में कहाँ पे जाना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें प्लानिंग होती है बिजनेस का। तो फाइनेंस लेना और उसको अच्छी जगह पे बजट करना ई कॉमर्स का पहला रूल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फेसबुक ऐड चला लोगे, सारे पैसे खर्च कर दोगे तो आपका बिजनेस चल जाएगा, नहीं चलने वाला। सो ये एक प्रॉपर इसका डिटेल्ड प्लानिंग होती है, जो आप आपके सीए से भी पूछेंगे तो वो बताएगा कि बिजनेस में फाइनेंस का कैसा रोल रहता है, कैसे उसको प्रॉपर लगाया जाता है, कितना उसको यूज किया जाता है, कैसे प्लानिंग की जाती है, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। बट मैं आपको एक मोटा मोटा समझा रहा हूँ कि बिजनेस में प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब कंपनी रजिस्ट्रेशन में जैसे हम बात कर रहे थे कि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आपका नाम, जो भी आपकी बिलिंग के नाम पे आप जो बिजनेस करना चाहते हो। फॉर एन एग्जांपल, मेरी कंपनी का नाम है रॉकेट साइंस आइडिया, मेरे जो भी बिलिंग होते हैं वो रॉकेट साइंस आइडिया के नाम से होते हैं, और मेरा ई कॉमर्स का जो भी नाम है xyz.com, तो वो एज अ ब्रांड xyz.com पब्लिकली जानती है, लेकिन बिलिंग के नाम पे मैं कुछ भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको सेम नाम मिल जाता है तो वो बहुत अच्छी बात है।
उसके साथ आपको चाहिए एक जीएसटी नंबर, उसके साथ आपका एक पूरा का पूरा सिस्टम होना चाहिए कि भाई आपका जीएसटी हर महीने जो भी आप इनवॉइसेस जनरेट कर रहे हैं उसका जो भी जीएसटी हो रहा है वो गवर्नमेंट को आप मंथली पे कर रहे हैं, उसका पूरा फाइनेंस, उसका पूरा अकाउंटिंग आप आपके सीए से मैनेज करवा सकते हैं या इन हाउस भी कर सकते हैं। एंड वो जीएसटी के सामने आप आपका जो भी मनी है उसको क्लेम कर सकते हैं, आप सेटलमेंट कर सकते हैं, जो आपको बहुत सारा फायदा होता है। कुछ लोग होते हैं वो जीएसटी लेते ही नहीं है, जीएसटी बिना जीएसटी के काम करते हैं, उससे क्या होता है बहुत सारे नुकसान होते हैं। आजकल फेसबुक, अगर आप फेसबुक पे मार्केटिंग करते हैं तो बिना जीएसटी के फेसबुक पे आपका एड अकाउंट ही नहीं बनता मार्केटिंग के लिए। सो जितने आप लीगल तरीके से जाओगे, जितना ऑफिशियल चीजें करोगे, उसके आपको बहुत सारे अदर एडवांटेज होते हैं, बट सामने आपको शायद नहीं दिख रहे होंगे, सामने आपको लाइबिलिटीज दिख रही होगी। सो बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपके लिए मस्ट है, जो एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो सीए का होता है उसके हिसाब से ही आपको करना। अब कुछ लोगों के यहाँ पे कहानी होती है कि स्टोर बिल्ड करना और ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करने में बहुत कंफ्यूजन लगता है। कुछ लोगों को लगता है कि वू कॉमर्स पे बनाना चाहिए या शॉपिफाई पे बनाना चाहिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सो मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो ये समझते हैं कि शॉपिफाई बेटर है या वू कॉमर्स बेटर है। कैन एनीबडी कैन आंसर दिस? मैं इसमें एक तीसरा सवाल डाल देता हूँ। हाउ मेनी पीपल हैव नो आइडिया कि ये दोनों चीजें क्या है? दैट इज आल्सो फाइन, वो भी एक हमारी ऑडियंस है। डेफिनेटली थर्ड आंसर। नो आइडिया, या नो आइडिया इज आल्सो अ गुड आंसर, दैट्स फाइन। ऑसम, या सो कुछ आ रहे हैं सर आंसर? बिल्कुल, हाँ। अच्छा, आपको नहीं दिख रहा? 50% इज नो आइडिया और 50% शॉपिफाई और वो कॉमर्स। सब लोग कह रहे हैं हाँ दोनों ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शॉपिफाई लुक्स सेफर और नो आइडिया। ग्रेट। सो यहाँ का इसका मैं सिंपल आंसर मैं ये बताता हूँ कि आप वो चीज यूज करना चाहोगे जिसको हमने हमारे देसी लैंग्वेज में अगर बात करें तो सस्ता रोता है बार बार और महंगा रोता है एक बार। राइट। ठीक है। सो सस्ता का मतलब ये है कि ऐसे फ्री के भी बहुत सारे स्टोर्स बन जाते हैं। आप HTML वेबसाइट पे भी बना सकते हो फ्री का स्टोर, ठीक है, वहां पे भी आपका काम तो शुरू हो ही जाएगा। बट व्हाट इफ योर सर्वर गेट्स क्रैश, आपकी जितनी रिक्वेस्ट आ रही है पर डे उतनी वो हैंडल ही ना कर पाए। व्हाट इफ आपकी वेबसाइट लोड नहीं हो रही है टाइम पे। व्हाट इफ आपका SSL सर्टिफिकेट नहीं है, पीपल डोंट ट्रस्ट योर वेबसाइट। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें। उसके अलावा आपकी वेबसाइट से मान लो किसी ने बाय भी कर लिया, बट डू यू हैव द प्रॉपर नेम, ईमेल आईडी, एड्रेस, वेरिफिकेशन, एवरीथिंग नहीं है। सो आप क्यों चांस लेंगे ऐसी वेबसाइट का जिसके अंदर कुछ सेकंड थॉट आ सकती है या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है बाद में। आप वो वेबसाइट या वो प्लेटफॉर्म यूज करोगे जिसमें आपको कल उठ के वो आपके लिए एक एडवांटेज बन जाए, जहां पे आप स्केल कर पाओ आपकी बिजनेस को। सो दैट वे शॉपिफाई वर्सेस अदर्स मैंने इसलिए लिखा है, शॉपिफाई इज अ प्रूवन, वर्ल्ड वाइड, टेस्टेड बाय लॉट ऑफ ई-कॉमर्स कंपनी। यस, टोरंटो में उनका ऑफिस है एंड वन ऑफ द बेस्ट सीईओज इन द वर्ल्ड। करेक्ट। सो तो ये कैनेडियन कंपनी है जो काफी अच्छा काम कर रही है और इतना फ्लॉलेस उनका जो इंटरफेस है और सारी चीजें हैं, मतलब एनीबडी हु इज नॉट इवन फेमिलियर विद एनी काइंड ऑफ ई-कॉमर्स कैन यूज दिस शॉपिफाई। तो गौतम, आपके कहने का मतलब है कि जो 103 एंटरप्रेन्योर आज हमारे साथ जुड़े हैं, इसमें आप, मैं और भास्कर हमारी टीम में लोग हैं, तो 100 एंटरप्रेन्योर जो हमारे साथ जुड़े हैं, इसमें एवरीबडी हुज गॉट अ प्रोडक्ट और अ सर्विस, या कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं भी है, वो कोई अच्छा प्रोडक्ट सर्विस, क्योंकि बनाना तो है नहीं, सोर्स करना है, और सोर्स करने के भी बहुत तरीके हैं। सो ऑल दीज पीपल हु आर हियर राइट नाउ, दे कैन यूज शॉपिफाई टू, and then they can pick up a product, किसी और का प्रोडक्ट किसी और को बेचना using this system without having to invest money in inventory, in production, is possible for normal people like us. Yes, having multiple product at a time, like आपके पास एक CRM भी है, आपके पास 2-3 और सॉफ्टवेयर है, instead of doing that I recommend highly go with Shopify because you get everything in under one system. Lovely. So this is how I suggest and select Shopify. Let's go next. अब आपकी प्रोसीजर्स एंड कंप्लायंस एंड पॉलिसीज, जब भी कोई वेबसाइट पे आप आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं, आपका जो भी लॉन्च करनी है आपको वेबसाइट, उससे पहले आपकी ये बेसिक कंपलसरी चीजें हैं, जैसे कि आपकी पॉलिसीज डिक्लेयर होनी चाहिए वहां पे कि आपकी रिफंड पॉलिसी कितने दिन की है। आप रिफंड इंडिया में रिफंड देना कंपलसरी है, ऐसा तो स्ट्रिक्ट कोई लॉ नहीं, बट देन
अभी अभी जो जितना भी ई कॉमर्स का लॉ जो है अवेलेबल, उसमें ये है कि कस्टमर अगर बोलता है कि भाई मुझे रिफंड चाहिए, नो मैटर व्हाट द प्रोडक्ट कंडीशन, आपकी प्राइस पसंद आई, प्रोडक्ट अच्छा लगा नहीं लगा, बट कस्टमर इज सेइंग आई वांट माय रिफंड, देन यू हैव टू गिव द रिफंड। देयर इज नो आर्गुमेंट, देयर इज नथिंग लाइक कि मैं नहीं दूंगा, मैंने तो बेच दिया, मेरा तो कुरियर चार्ज लग गया, वो नहीं चलेगा। दिस इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। सो आपकी वेबसाइट पे क्लियरली पॉलिसी डिफाइन होनी चाहिए कि 7 दिन के अंदर हम रिफंड लेते हैं, 7 दिन के बाद हम नहीं लेते। विद इन 24 आवर्स आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा इफ द प्रोडक्ट इज रॉन्ग और डैमेज और एनीथिंग। सो अकॉर्डिंग टू कस्टमर, जब आपकी वेबसाइट पे आता है, अगर कुछ चीजें उसके साथ गलत होती है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं वी विल नॉट लिसन टू यू। मैं एक चीज यहाँ पूछना चाहता हूँ, आई जस्ट वांट, मैं साथ साथ ना अपनी ऑडियंस के लिए ये चीज सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। अगर कोई आदमी ये सोच के डर रहा है, अरे यार कौन सामान बेचेगा फिर वापस आएगा, तो सामान किसी और से आप सोर्स कर सकते हो, बेचोगे आप अपने शॉपिफाई स्टोर पे, मार्केटिंग आप करोगे, उसकी डिलीवरी कोई और करेगा, उसको पिकअप करके रिफंड भी कोई और कर सकता है। हर चीज के लिए कोई ना कोई कंपनी और वेंडर, दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जो आपकी, जैसे इन्होंने बोला कि राइट वेंडर्स के साथ काम करो। यू नीड टू, Gautam will tell you how you can pick up the right product, test the market, start selling it. Selling is your job. बाकी सारी logistical चीजों के लिए there are enough companies जो सारा काम आपके लिए कर सकती है. So there's nothing to worry about in any of those logistical challenges. Correct. हाँ जी. तो यहाँ पे आगे वेंडर्स की बात। अब वेंडर्स, जैसे मैंने बताया कि आपके पास बहुत सारे वेंडर्स हैं अभी इंडिया में। जैसे आप कोई भी पोर्टल देख लो, इतने सारे वेंडर्स हैं जहाँ पे हर चीज के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। और मेरा ये मानना है, और मेरा ये टेस्टेड हुआ है, बहुत बार मैंने ये टेस्ट किया अपने स्टूडेंट्स ने के साथ में, मैंने काम करके देखा, ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है जो जिसमें आप ई कॉमर्स नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड पीपल आर सेलिंग इट, एंड व्हाई कांट यू? सो इट इज ऑल अबाउट राइट प्रोडक्ट। कैटेगरी आपकी निश कुछ भी हो सकती है, बट उसके अंदर उस निश में प्रोडक्ट कौन सा हॉट है, दैट यू नीड टू चूज राइटली। सो उसके लिए आपको वेंडर सिलेक्शन करना है। वेंडर भी ऐसे होते हैं यहाँ पे इंडिया में तो बहुत वो चलता है, लेकिन आप आपकी इन्वेंट्री स्टॉक कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेंट्री स्टॉक नहीं करनी है तो दूसरा ऑप्शन अवेलेबल होता है कि किसी के साथ आप अफिलिएट बन जाओ, आप सिर्फ उसको ऑर्डर दे दो, वो आपका डिस्पैच कर देगा। Lovely, I love that model. बिकॉज मतलब कि मेरे को ये जैकेट, मुझे लगता है कि ये अच्छी जैकेट है और मुझे लगता है कि ये बहुत लोग लेना चाहेंगे, तो मैं इस जैकेट कंपनी का अफिलिएट बन सकता हूँ। वो मेरे को 20, 25, 30, 50% तक कमीशन देंगे बेचने के ऊपर। ना मुझे जैकेट बनानी है, ना मुझे इसको वेयर हाउस में रखना है, स्टोर करना है, ना मुझे इसका नया मॉडल, नए कलर्स के बारे में कुछ सोचना है। सिर्फ सेलिंग पे मेरा फोकस होएगा, बाकी वो लोग करेंगे। एब्सोल्युटली, आपने सही बताया। तो मतलब एक कंपनी जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स करके एक प्रोडक्ट बना रही है या मल्टीपल प्रोडक्ट बना रही है, मैं उसका 30-40% बिजनेस पार्टनर बन सकता हूँ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। परफेक्ट। बिल्कुल। और ऐसे आप मल्टी ब्रांडेड स्टोर बना सकते हैं जिसमें आप अच्छी ब्रांडेड कंपनी के साथ अफिलिएट हो जाएगी और आपका स्टोर पे आप अच्छे प्रोडक्ट रखिए जो ब्रांडेड है, सेल्फ ऑलरेडी उनकी रेपुटेशन मार्केट में हाई है, आप अच्छे से बेच, आपको प्रॉब्लम ही नहीं। अगर आप आपका खुद का ब्रांड बनाना चाहते हो, देन देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी। सो आई वुड रेकमेंड कि आपको इनिशियली आप अफिलिएट के साथ शुरू कर सकते हैं, आपको कम खर्च में आपका बिजनेस शुरू हो सकता है, बट एंड ऑफ द डे आप अगर अपना ब्रांड बनाएंगे तो लॉन्ग रन यू विल विन द गेम, बिकॉज एवरीथिंग विल बी अंडर योर कंट्रोल। So that is how vendor को आपको, ऑडियंस आई वांट टू नो, हमारे माइंड में कुछ बल्ब ऑन मोमेंट्स आ रहे हैं, यार मैं सोच रहा हूँ आई शुड, बिकॉज आई हैव ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट कैजुअल वेयर ट्रैक सूट काइंड ऑफ अ कंपनी, स्नीकर्स, हमारे अपनी कंपनी के स्नीकर्स, हमारे ट्रैक सूट्स और हमारी इस टाइप की इस टाइप की कूल कैप्स एंड ऑल ऑफ दैट। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा काम है उन चीजों के अंदर, बट दैट्स व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। सो अभी आप लोगों को कैसा लग रहा है, पीपल हियर, what is that one idea that you're thinking, I'm going to take this on Shopify and start my own store? Somebody may be thinking what kind of product that I sell. Okay, so I will answer that as well. I will reveal my product as well. मैंने पूछा बल्ब ऑन, बहुत सारे लोग कह रहे हैं शैंडलियर ऑन। इतने सारे बल्ब एक साथ ऑन करवा दिए, थैंक यू। ओके, सो किसी ने बोला अचार क्या अचार भी बेच सकते हैं इसमें? एनीथिंग दैट यू थिंक कि भाई इज सेलेबल। मैं पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा, आप बाय करते हो क्या? अगर आपका आंसर है हाँ, तो पूरा दुनिया खरीदेगा वो। ओह परफेक्ट, आप खुद खरीदते हो? हाँ मैं तो बिल्कुल खरीदता हूँ, तो देन दैट मींस द आंसर इज एवरीबॉडी विल बाय। फैंटास्टिक, गुड वे ऑफ सॉर्ट ऑफ आंसरिंग योर ओन क्वेश्चन। बिकॉज आप देखिए ना, आप अचार कितने बार खरीदते हैं साल में? आपको लगेगा कि
हर महीने एक पैकेट आता है 250 ग्राम का या 500 ग्राम का, which means you are a customer to buy at least 12 times in a year. Lovely. So moving next, हाँ मैं भूल गया एक चीज. So आप जब कोई भी सप्लायर और वेंडर्स के साथ जब आप काम करते हैं तो आपको कुछ टेस्टिंग के मेथड्स होते हैं, जैसे कि कुछ सप्लायर का आपको पता चलेगा कि उनका डिलीवरी टाइम कितना है, कुछ सप्लायर का पैकेजिंग का टाइम बहुत ज्यादा होता है, कुछ सप्लायर का स्टॉक कम होता है किसी के पास कुछ और. तो आप जब 10 सप्लायर 20 सप्लायर के साथ काम करेंगे, आपको विदिन 15 दिन 20 दिन में आपको ऐसा एक्सपीरियंस होने लगेगा कि ये सप्लायर सही है, ये सप्लायर सही नहीं. तो जो सही है उसका भी आपको हमेशा एक रिप्लेसमेंट तो रखना ही है. कभी भी एक सप्लायर के ऊपर आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते ई कॉमर्स में, क्योंकि आपके पास कंटिन्यूसली ऑर्डर आ रहे हैं. आप ये नहीं बोल सकते हैं कि आउट ऑफ स्टॉक. सो यू नीड टू हैव एटलीस्ट मल्टीपल वेंडर फॉर वन सिंगल प्रोडक्ट. ठीक है. अब आती है बात प्रोडक्ट क्वालिटी की. प्रोडक्ट क्वालिटी सबसे ज्यादा कन्वर्जन का गेम प्ले करता है ऑनलाइन के अंदर, बिकॉज ऑनलाइन में जितने भी रिफंड और एक्सचेंज और व्हाटएवर द इश्यूज आते हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन, वो सारा प्रॉफिट खत्म कर देगा. हाँ, आपने पैसा कमाने के लिए अगर एक घटिया प्रोडक्ट बेच दिया, नो डाउट आपकी सेल आ जाएगी, आपके ऑर्डर आ जाएंगे, बिकॉज पीपल सडनली फील कि अरे ये प्रोडक्ट इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, लेट मी प्लेस एन ऑर्डर, ऐसा सोचेंगे लोग और लोग ऑर्डर करते हैं. बट द इज अंटिल जैसे वो ऑर्डर प्लेस कर दिया, आपने डिस्पैच भी कर दिया, उसके पास जैसे ही पहुंचेगा ना, तो इमीडिएटली वो कस्टमर दिखेगा कि यार ये तो घटिया क्वालिटी है, या ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है, या ये फटा हुआ है या टूटा हुआ, व्हाटएवर इट इज. तो उस समय वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पे आएगा, बैड रिव्यू लिखेगा और आपसे फोन पे वो मांगेगा, रिफंड मांगेगा, एक्सचेंज मांगेगा, या जो भी होगा, पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा उसका, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. वो नेक्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट पे कभी नहीं आएगा. सो दिस इज वेयर लॉट ऑफ ई कॉमर्स कंपनी जो नए लोग स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि वो कुछ भी प्रोडक्ट को उठा के सेल करते हैं. इवेंचुअली दे एंड अप लूजिंग देयर रेपुटेशन एंड दे स्पॉइल्ड देयर ब्रांड. सो मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, ऑलवेज बैंग ऑन द क्वालिटी. क्वालिटी आपके पास ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको, मैं गैरी वी का एक वीडियो देख रहा था एंड गैरी वी वाज सेइंग कि हम अगर कोई शूज देखते हैं और वो शूज एक कम्युनिटी है, मार्केट है, मतलब वो इतना सारा अवेलेबल है, वो इतना ज्यादा बाय होता है, कम्युनिटी मार्केट है. एंड वो शूज आप और मैं बना के बेच सकते हैं, चाइना से इंपोर्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. बट पीपल बाय, व्हाई दे बाय स्पेसिफिक ब्रांडेड शूज, जैसे कि नाइकी हुआ या एडिडास हुआ या जो भी हुआ, क्योंकि उसका एक ट्रस्ट बना हुआ है, एक रेस्पेक्ट बनी हुई है, क्वालिटी मेजरमेंट है वहां पे. सो अगर आप वो क्वालिटी मेक श्योर करते हैं कि आपके कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं होगा, देन यू आर अ ब्रांड. तभी आपके पास कस्टमर आएंगे, वो प्राउडली शेयर करेंगे आपसे परचेज किया हुआ प्रोडक्ट, दूसरों को रिकमेंड करेंगे. एंड दैट्स वेयर द मैजिक स्टार्ट. जब कस्टमर को रिकमेंड करना शुरू करता है विदाउट मार्केटिंग, इफ यू आर गेटिंग एन ऑर्डर ऑन योर स्टोर, दैट्स द डे दैट यू आर स्टार्टिंग बिल्डिंग एन अ ब्रांड. राइट. सो सारा मैजिक छुपा हुआ है यहाँ पे, पूरे इस बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट क्वालिटी में ही मैजिक है. आपने स्नीकर्स की बात करी, इट्स सो एक्साइटिंग. मैं एक छोटी सी चीज शेयर कर सकता हूँ आपके साथ यहाँ. तो जो आपने कहा कि स्नीकर्स और क्वालिटी और ये ट्रेडिंग, तो मैंने स्नीकर्स में ट्रेडिंग करता हूँ मैं. तो मैंने अभी रिसेंटली स्टॉक एक्स करके वेबसाइट है जो सिर्फ स्नीकर्स के लिए है. सो ऑल ऑफ यू पीपल जो आप ई कॉमर्स की अभी बातें सुन रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और कुछ लोगों को स्नीकर्स का बहुत शौक है, तो अगर आप स्नीकर्स में इंटरेस्टेड हैं, सो जो चीज आपको अच्छी लगती है, जैसे गौतम ने बोला कि जो चीज आपको अच्छी लगती है, आपको क्वालिटी अच्छी लगती है, दूसरों को भी वही अच्छी लगेगी, तो जैसे आपका कस्टमर भी वैसे होगा. सो मैंने स्टॉक एक्स के ऊपर एक अकाउंट बनाया और मैंने उस पर बोला कि मैं इस पे स्नीकर्स खरीदूंगा और बेचूंगा. तो मैंने स्नीकर्स खरीदे और जो मुझे अच्छे लगे, ये स्नीकर से आई लाइक दिस कलर. बहुत सारे लोगों ने बोला कलरफुल है, ये नहीं चलेगा, व्हाटएवर. मेरे को अच्छा लगा, मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है. तो ये $120 के मैंने खरीदे और 3 पेयर हम 240 के निकाल चुके हैं. वेरी नाइस. एंड फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, तो फिर एक ये नाइकी का एयर मैक्स का जूता है, विच इज अ वेरी कॉमन शू.
एयर मैक्स, लेकिन ये सेंट पैट्रिक्स डे का जो फेस्टिवल होता है, तो उन्होंने एक सेंट पैट्रिक्स डे के फेस्टिवल के लिए थोड़ा सा ये पीछे एम्ब्रॉयडरी अलग करके रखी हुई थी। तो अब सेंट पैट्रिक्स डे खत्म हो गया, अब ये जूते को कोई पूछ नहीं रहा था। मैंने देखा, मुझे जूता बहुत अच्छा लगा, मेरे को लगा शायद ये अगले साल बिक जाएगा जब ये सेंट पैट्रिक्स डे फिर से आएगा, तो मैंने इसको 120 में दे दिया। अब जब सेंट पैट्रिक्स डे आया तो हमने इसको 270 में निकाला इस बार जब निकला था। So there is an opportunity in absolutely everything that online. So thank you for saying that. I'm just making it simple and giving examples so everybody understands कि ये स्पेशली बच्चे वगैरह, मतलब 100, 200, 300 डॉलर आप सिर्फ जूते वूतों से रोज किसी वेबसाइट पर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। Thank you for sharing this, and I mean I'm really happy to know कि आप ये सब बिजनेस में भी हैं, एसोसिएटेड हैं। ये अभी तक तो शौक है, आगे देखते हैं कहां तक जाती है गाड़ी। ओके, सो प्रोडक्ट सिलेक्शन की हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट सिलेक्शन में क्या है कि आपकी क्वालिटी, आपकी डिजाइन, क्रिएटिविटी जो है आपकी, जैसे सर ने बताया कि कुछ एकदम मल्टी कलर था तो लोगों ने बोला कि ये नहीं बिकेगा शूज, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बिकॉज सम पर्सन में बी लाइक कि भाई ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, किसी को चाहिए कलरफुल चाहिए, किसी को कुछ डिजाइन, जैसे टी शर्ट पे डिजाइन होती है, प्रिंटेड डिजाइन होती है। सो एवरीबडी हैज देयर ओन एक्सेप्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग। सो आप कितने ज्यादा ऑप्शंस दे सकते हो, वेरिएंट कितने ज्यादा दे सकते हो, कितना आप मॉडर्न बना सकते हो, कितना आप ऑप्शंस को लेकर के आप प्ले कर सकते हो, लोगों के माइंड्स को, कल्चर को, आप ट्रेंड को अगर कैपिटलाइज करना चाहते हो, आप ट्रेंड देखो। ऐसी बहुत सारी चीजें जो ई कॉमर्स फील्ड में आप टेस्ट कर सकते हो, बिकॉज सी आपको एक डिजाइन ही बनाना है, ग्राफिक डिजाइनर के साथ में बैठ के आपको डिजाइन बनाना है, आपको डिजाइन बना के आपके स्टोर पे लगाना है। एंड इफ दैट पर्टिकुलर डिजाइन गेट्स अट्रैक्टेड बाय द लॉट ऑफ पीपल, देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट, जस्ट आपको वो डिजाइन वाला, आपको बस शिपिंग ही तो करवाना है, प्रोडक्ट तो आपके पास ऑलरेडी है। That's the best. You don't have to a traditional business, पहले आप डिजाइनर के साथ बैठोगे, फिर जब तक आपका सामान बिकना शुरू होगा तब तक दूसरी चीजें मार्केट में आ जाएंगी, बट यहाँ वो सप्लायर कर रहा है वो सब कुछ, आपने सिर्फ you have to just market to the right audience. Exactly. Perfect. So ये यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट सिलेक्शन है ना, ये ऐसी चीज है कि इसमें आपकी क्रिएटिविटी, आपका इंटेलिजेंस, आपकी स्मार्टनेस आपको आगे लेके जाएगी। ये अगर आप, ये ऐसी चीज है कि ये कीप एक्सप्लोरिंग वाली चीज है। इट्स नथिंग लाइक मेरे को वो प्रोडक्ट देखना है जो शायद ट्रेंड में है, या किसी एक नीश के लिए है। मतलब मान लीजिए अगर मैं सिर्फ सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ बेच रहा हूँ, तो इसमें भी मैं अपनी माइक्रो नीश यूज कर सकता हूँ कि मैं तो सिर्फ स्पेशल, मेरा स्टोर स्पेशलाइज्ड है। एब्सोल्युटली, ओके। बिकॉज क्या होता है कि मतलब हमने एक स्टोर शुरू किया था यूएस में लास्ट ईयर। तो यूएस में हम जब कुछ प्रोडक्ट बेच रहे तो हमने कुछ एक पैटर्न नोटिस किया। वो पैटर्न क्या था कि 40 to 50 एज की women's were buying certain product on our store, और वो ही एज की बाय कर रही थी, हमने ये देखा। तो जब हमने देखा, वो हमको पता कैसे चला, अब लोगों को लगेगा कि यार शॉपिफाई में कोई एज तो डालता नहीं, तो आपको एज कैसे पता चलती है। व्हाट वी वर डूइंग रिलीजियसली कि हमारे स्टोर पे जो भी बाय करता था, हम उसको चेक करते थे, उसके ईमेल आईडी को चेक करते थे, उनकी फेसबुक प्रोफाइल को चेक करते थे, और उनके फेसबुक प्रोफाइल से हमको जज पता चलता था कि हु इज दिस कस्टमर। एक्चुअली वो कस्टमर का हमको एक पूरा वो पता चलता था, हिस्ट्री, बैकग्राउंड पता चलता था। हमको पता था कि एजेड वुमेन है और ये इस टाइप के प्रोडक्ट बाय करती है। एंड वो प्रोडक्ट क्या था, ब्यूटी के प्रोडक्ट थे बेसिकली, ठीक है। और वो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स को हमने जब स्केल किया, इतना ज्यादा हमारी सेल बढ़ गई, बिकॉज हमने फोकस ही नहीं किया था, कि हम ध्यान ही नहीं दे रहे थे पहले तो कि ये ऑर्डर आ रहे हैं, चलो आ रहे हैं तो हमने शिप कर दिया, आ रहे तो शिप कर दिया, ऐसा। पर हमने देखा कि ये पर्टिकुलर ऑर्डर इस पर्टिकुलर जगह से आ रहा है, तो क्यों आ रहा है। और फिर हमने पूरे यूएस में मार्केटिंग छोड़ के हमने वो पर्टिकुलर रीजन पे मार्केटिंग शुरू किया, तो हमको बहुत सारे ऑर्डर मिले। और फिर ग्रेट एग्जांपल। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने बोला कि जब हमने यूएस में स्टोर खोला, तो इट्स ऐसे खोलता, एक यूएस में स्टोर हो गया, एक यूके में हो गया, एक ब्राजील में हो गया, सो यू कैन टेक योर शॉपिफाई स्टोर and open only in a specific location as well. Yeah. And everything is online. I mean, we live in magical time. This is just so fascinating. अभी तक हमारे पास कुछ 7-8 स्टोर हैं और मल्टीपल स्टोर हैं। अभी तो वो स्टोर्स के साथ हमने पार्टनरशिप कर दी है, मतलब कुछ लोग हमारे साथ एसोसिएट हुए और दे कम अप विद ग्रेट आइडिया एंड दे हैड सम मैन्युफैक्चरिंग इन प्लेस, ठीक है। खुद का मैन्युफैक्चरिंग है, बट दे वर अवेयर, दे वर नॉट नोइंग कि भी ऑनलाइन बिकता कैसे है।
ठीक है, तो हमने उनके साथ पार्टनरशिप कर ली। हमने उनको बोला कि ठीक है, आपकी सेल्स, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये सब मेरी एजेंसी मैनेज करेगी, यू जस्ट फोकस ऑन द प्रोडक्शन। अमेजिंग। दिस इज अ कोलैबोरेशन हैपेंड एंड वहां से फिर हमको बहुत सारे आइडियाज आने लगे। मतलब इट्स अ एंडलेस बिजनेस, जहां पे आप जब आप शुरू करोगे तो आपको इतने आइडियाज आएंगे, आपको दिखते जाएगा, रास्ता दिखते जाएगा, आपको लगेगा कि ये तो बहुत बड़ा समुंदर है। बट उससे फायदा ये है। 18-19 साल के बच्चे $1 मिलियन कमा रहे हैं इस शॉपिफाई के ऊपर। जी। एक हमने अभी इंटरव्यू किया किसी का, वो लड़का गौतम क्रिसमस से पूरे साल वो अपनी सॉक्स के डिजाइन तैयार करवाता है चाइना से, अपनी वेबसाइट पे वो सब करवाता है। He opens his store on the 24th of November and closes it on the 25th of December. सिर्फ क्रिसमस की 1 महीने की सेल होती है, 1 साल की प्रेपरेशन होती है। कहता है मुझे वेंडर से मिलना है, सॉक्स के डिजाइन बनाने हैं, डिफरेंट कौन सा साइज बिकेगा, कौन सा, वो सब तैयारी होती है 1 साल। 24 नवंबर से 24 दिसंबर के बीच में क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस के टाइम कहता है कि मेरी सॉक्स बिकती है, अदरवाइज मेरा फेसबुक एड बहुत महंगा होता है, तो वो प्रोडक्ट मेरे को पूरे साल में वारा नहीं खाता। 1 महीना लोग एक्स्ट्रा पैसे खर्चते हैं, तो मुझे सिर्फ 1 महीना वो बिजनेस वारा खाता है। वो $1 मिलियन का वो करता है। मैंने उसका 90 मिनट्स का इंटरव्यू किया था कि हाउ ही डज इट। एग्जैक्टली, सो फैसिनेटिंग, 18 years old। एग्जैक्टली, एंड दैट्स द पावर। अभी कुछ लोग होंगे कि हमको जस्ट जैसे मैंने बताया था कि इनिशियली अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू या अफिलिएट बन के किसी भी ब्रांड के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। बट यहाँ पे जब प्रोडक्ट सिलेक्शन की बात आती है, वहां पे मैं ये बात मेंशन करना चाहूंगा, अगर आप लॉन्ग रन अगर बिजनेस करना चाहते हो तो आप अपने ब्रांडेड प्रोडक्ट बनाइए। मतलब यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट क्वालिटी है, जब आप सब कुछ इंश्योर कर रहे हैं, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा क्वालिटी, अच्छा मटेरियल, अच्छा डिलीवरी, अच्छा शिपिंग, सब कुछ इंश्योर कर रहे हैं, देन व्हाई कांट यू जस्ट कि आपका ब्रांड भी वहां पे स्टिकर लगवा दो, उसका लोगो लगवा दो, अच्छा पैकेजिंग करवा लो। ठीक है, सो ये 2 चीज ऐड करने से आपका क्या है, वो एक स्पेशल ब्रांड बन गया। और वो ब्रांडेड प्रोडक्ट का कोई कंपैरिजन नहीं है, इवन दो यू आर बाइंग फ्रॉम समवन, बट यू आर बिल्डिंग अ ब्रांड एंड देन सेलिंग इट। सो उसमें क्या होगा, ऐसे नॉर्मल वही चीज अगर आप कहीं से लेके बेच रहे हो तो उसके 10 कंपटीटर होंगे, मे बी सेम प्रोडक्ट अदर पीपल मे बी सेलिंग एट द सेम टाइम। बट जब आप आपके पर्सनल ब्रांड में दोगे तो आप उसका 3 टाइम 4 गुना, मे बी डबल आप प्राइस करके बेच सकते हो, बिकॉज आपने इंश्योर किया क्वालिटी अच्छी है, क्रिएटिविटी अच्छी है, कंफर्ट है, सब कुछ अच्छा है, तो आप उसका चार्ज कर सकते हैं एंड पीपल आर विलिंग टू पे। Guys, how many people are getting bulb on ideas? मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये हो सकता हूँ। How many people are like going crazy because I am right now? 2 चीजें, एक तो मुझे 26,000 लोगों का इवेंट करना है, और दूसरा मेरे को अपना ब्रांड लॉन्च करना है। अभी तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट ईयर आई एम गोइंग टू पुट दिस, जो आज मैंने आपको सीखा। Anybody can do this because it's like a need of hour, मैं तो ये बोलूंगा today is the need of hour, because anybody who is in online space, market is open and inviting everybody. लवली। मेरी एक दुकान यूएस में आपने जैसे खोली ना, इतनी आसानी से आपने बोला मैंने यूएस में स्टोर खोल लिया। आई लव दैट, दैट इज द पावर ऑफ द इंटरनेट। मैं भी करूंगा, आपसे गाइडेंस लूंगा नेक्स्ट ईयर। So this next slide is marketing and automation. I think हमारे कम्युनिटी में आप अभी जो हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, I believe सबको फेसबुक ऐड आती होगी या ऑटोमेशन पता होगा। अगर नहीं भी पता है तो मैं कुछ चीजें ऐसी बताना चाहूंगा जो हमने कुछ चीजें टेस्टिंग की है और वो अच्छे उसमें रिजल्ट्स आए हमको। जैसे मैं बता दूं, फेसबुक ऐड तो मतलब इतना कॉमन है कि आप कहीं से भी सीख सकते हो। फेसबुक, गूगल पे, बहुत से जगह पे उसकी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे आपको। इवन फेसबुक की खुद की लाइब्रेरी में उनके खुद के कोर्सेज होते हैं, फ्री कोर्सेज होते हैं, वहां पे भी आप सीख सकते हो फेसबुक ऐड चलाना। इट्स नॉट दैट सो क्रिटिकल। द प्रॉब्लम इज कि आप फेसबुक ऐड को अगर आप समझते नहीं हो, मतलब कि आपने ऐड चला दिया, मतलब बजट डाल दिया, प्रोडक्ट लगा दिया, वीडियो लगा दिया और उसको प्रमोट कर दिया बजट डाल के, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क एनीमोर। वो एक ट्रेडिशनल मेथड था। आपका क्रिएटिव, आपका जो वीडियो है, आपकी जो एड है, दैट हैज टू स्पीक, बिकॉज क्रिएटिव इज द वेरिएबल ऑफ सक्सेस। हाँ, बिकॉज फेसबुक तो लोगों तक पहुंचा देगा आपकी एड को, आपकी ऑफर को, बट अगर आपकी ऑफर इज नॉट ब्लॉकबस्टर ऑफर, नोबडी विल बी बाइंग। और ऑफर का मतलब ये तो नहीं होता हमेशा कि 90% ऑफ दूंगा तो मेरा ऑफर आपके ऑफर से बेटर होगा। नो, प्राइस डजंट मीन कि भाई कम प्राइस होगा तो बाय करेंगे, नहीं। लवली, लवली। ऑफर का मतलब ये है कि व्हाटएवर यू आर ऑफरिंग हैज टू स्पीक, कि भाई वो उसको लगना चाहिए कि अरे दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग, दिस इज लेट मी सी व्हाट इट इज।
सो वो होल्ड करे उसका अटेंशन, वो जाए, देखे, एक्सपीरियंस करे एंड देन मेक अ डिसीजन। सो वो जब एक्सपीरियंस एक क्लिक करता है, आपकी पेज पे जाता है, आप उस पेज पे, वहां पे आपके पास पूरी पॉसिबिलिटी है, आप उस कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हैं या आप उसका एक्सपीरियंस खराब कर सकते हैं। बिकॉज वो जो प्रोडक्ट पेज है, वहां पे आप स्कैरसिटी डाल सकते हैं, उस प्रोडक्ट में आप डिटेल ट्यूटोरियल डाल सकते हैं। आप अगर आप कपड़े बेच रहे हो तो आप बोल सकते हैं इसकी वॉशिंग करने की ये टेक्निक है, ये चीज आप वॉशिंग में याद रखें या ध्यान रखें। या आप कोई ऐसी चीज बेच रहे हैं जिसका कलर उड़ सकता है, तो वो आप मेंशन करें। आप कुछ ऐसा ब्यूटी का प्रोडक्ट यूज करें तो आप वहां पे एज लिखें कि इतने से इतने बच्चे नहीं यूज कर सकते, उनकी स्किन के वो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें आप करेंगे ना। सी मेजोरिटी मैंने देखा है डिजिटल मार्केटिंग में या ऑनलाइन मार्केटिंग स्पेस में लोग बड़ी बड़ी चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जैसे कि फेसबुक, ऑनलाइन बिजनेस मतलब फेसबुक एड, अफिलिएट मार्केटिंग मतलब गूगल एड या ईमेल मार्केटिंग, या ऐसे समझते हैं। लेकिन डेप्थ अगर आप देखो ना, तो बिजनेस एक्चुअली छोटी छोटी चीजों से चलता है। जैसे कि उसके रिव्यू हो सकते हैं, जैसे कि स्पेसिफिकेशन हो सकते हैं, या टिप्स हो सकती है हाउ टू यूज दिस प्रोडक्ट। जैसे मैगी के ऊपर लिखा आता है पीछे कि भाई 2 मिनट में ये मैगी बनती है, लेकिन कैसे बनती है उसका वो कितनी सिंपल चीज है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन इट्स वेरी नाइसली डन। तो छोटी छोटी चीजों में क्या होता है, बिजनेस होता है। लेकिन लोग हमेशा बड़ी चीजें फोकस करते हैं कि नहीं मेरा लोगो बड़ा दिखना चाहिए, वो नहीं। अमेजिंग लाइन। ये आई थिंक हम जब इस इंटरव्यू को यूट्यूब पे डालेंगे तो इसका टैग लाइन ये होगा, छोटी छोटी चीजों में बिजनेस होता है। वेरी नाइसली सेड, वेरी नाइस। सो अब जैसे फेसबुक ऐड के बारे में बात करूं तो हमने कुछ चीज ऐसी टेस्टिंग की तो पता चला है, जैसे कि आपने एक कन्वर्जन ऐड चला दिया, एक बढ़िया वीडियो या बढ़िया प्रोडक्ट इमेज लिया, आपने बहुत अच्छे से उसका क्रिएटिवली उस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया, अच्छा कॉपी लिखा, और आपने अच्छी ऑडियंस को टारगेट किया, मल्टीपल ऑडियंस को टेस्ट किया, एंड देन यू स्टार्टेड प्रमोटिंग, लेट्स से $10 अ डे, $20 अ डे, $50 अ डे, व्हाटएवर बजट यू अलाउ, कि उसके साथ आपने शुरू किया। आप क्या करते हैं, नॉर्मली लोगों के पास पेशेंस नहीं होता है, वो पहले दिन देखते हैं, दूसरे दिन देखते हैं, बोलते सेल नहीं आ रहा है, ऑर्डर नहीं आ रहा है, बंद कर दो ऐड। सो दिस इज नॉट द ई कॉमर्स वर्क्स। ई कॉमर्स में ऐसे काम नहीं होता। ई कॉमर्स में आपको लॉन्ग टर्म खेलना पड़ेगा, आपको बड़ा बजट रखना पड़ेगा, और आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम आपके जो कस्टमर स्टोर पे आके गए, आप उनको रीटारगेटिंग में लेके आ सकते हैं, वापस से ऐड दिखा सकते हैं, कुछ ऑफर दे सकते हैं, कुछ और चीजें दिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, उनको कन्विंस कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप सोशल प्रूफ क्रिएट कर रहे हैं क्या, आपके स्टोर पे रिव्यूज दिख रहे हैं क्या, आपके जो ऐड चल रही है उस ऐड के ऊपर कमेंट कितने, उस ऐड के ऊपर लाइक्स कितने, उस ऐड के ऊपर शेयर कितने, वो सब चीजें आप ध्यान रखते हैं क्या, नहीं रखते। हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते हैं कि बस मेरी ऐड चले और ऑर्डर आ जाए। सो दिस इज नॉट मतलब आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको डीप जाना पड़ेगा, आप ऊपर ऊपर से बिजनेस नहीं कर सकते, आपको अंदर जाना पड़ेगा। ठीक बात है। सो ये मार्केटिंग एंड ऑटोमेशन के टूल्स कुछ अगर बात करें तो शॉपिफाई अपने आप में एक बहुत बड़ा टूल है, जो प्लेटफॉर्म है जो हर चीजें सिंप्लीफाई कर ही देता है। बट फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि ईमेल मार्केटिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि गेट रेस्पॉन्स है, कन्वर्ट किट है, वो बहुत सारे चीजें अवेलेबल, वो आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद एसएमएस मार्केटिंग भी उसमें यूज करना चाहिए हमको। उसके बाद अपसेल के कुछ प्लगइन्स आते हैं, स्केर्सिटी के कुछ प्लगइन्स आते हैं। ये सारी चीजें अगर आप यूज करते हैं और वो भी टेस्ट करते हैं, यूज करने का और टेस्ट करने में दोनों में डिफरेंस है। मतलब कोई चीज आप यूज कर रहे हो बट उसकी जरूरत नहीं है तो आप क्यों यूज कर रहे हो, और टेस्ट करने से आपको पता चलता है कि हाँ ये काम कर रहा है तो ये रखूंगा, अगर ये काम नहीं कर रहा तो मैं ये नहीं रखूंगा। सो वो टेस्टिंग बेसिस पे आप ऑटोमेशन और मार्केटिंग को स्केल कर सकते हैं। हाँ, अब सेकंड लास्ट पॉइंट है कस्टमर सपोर्ट। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे यूएस में क्या होता है कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं तो आपके स्टोर पे जैसे कस्टमर आता है, पेपल या आप जो भी पेमेंट गेटवे यूज करते हैं, स्ट्राइप यूज करते हैं या पेपल यूज करते हैं, या शॉपिफाई का खुद का एक पेमेंट है उनका, वो अगर आप यूज करते हैं तो उसमें जो पेमेंट आता है तो इंस्टेंट आपके अकाउंट में सीधा डॉलर्स आते हैं। जबकि इंडिया में मोस्ट ऑफ द केसेस में कैश ऑन डिलीवरी होता है, आपको पेमेंट जो है ना बाद में आती है, आपको सिर्फ ऑर्डर दिखता है लेकिन पेमेंट कलेक्ट नहीं होती है। तो मेनी टाइम्स में इंडिया में क्या होता है कि आपके आरटीओ जो होता है, रिटर्न ऑन, ये जो आरटीओ होता है, आपकी रिटर्न टू ओरिजिन जो होता है, वापस जो प्रोडक्ट वापस कैंसिल होता है, मतलब डिलीवरी करने जाता है बॉय, वो कस्टमर बोलता है कि नहीं मैंने तो ऑर्डर ही नहीं किया, या ये ऑर्डर गलती से हो गया था, या ये वाला प्रोडक्ट नहीं चाहिए मुझे, वो वाला प्रोडक्ट चाहिए। ऐसे करके इंडिया में ये सब चीजें फेस होती है, बहुत ज्यादा होती है। इवन बड़ी बड़ी ई कॉमर्स कंपनियां स्ट्रगल कर रही है इन सब चीजों में। सो बट यूएस में ये सब चीजें नहीं है। यूएस में कोई कैश ऑन डिलीवरी नहीं होता, सीओडी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यूएस में। वहां पे सीधा अपफ्रंट पैसा होता है, जैसे ही ऑर्डर आया मतलब आपके अकाउंट में सीधा डॉलर्स आ गए। श्योर। नाउ
यहाँ पे कस्टमर को आप कितना अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। जैसे आपका ऑर्डर आपके अकाउंट में, आपके वेबसाइट पे आया, क्या आपके ईमेल जाता है वेबसाइट से कि योर ऑर्डर नंबर इज दिस एंड विद इन 24 आवर्स वी विल शिप योर ऑर्डर एंड वी विल नोटिफाई आपका जो ट्रैकिंग नंबर है वो सब मेल जाते हैं आपके? नहीं जाते तो आपको इंश्योर करना है, ठीक है। आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है, हाई टिकट प्रोडक्ट है, तो हो सके तो आपको कस्टमर को बात करनी है तो बात करो, पर्सनलाइज मेल करना है तो पर्सनलाइज मेल करो, बिकॉज एवरी कस्टमर इज अ फ्यूचरिस्टिक, आपका बहुत बड़ा कस्टमर है। आज आपके पास अपॉर्चुनिटी उसको उसका दिल जीतने की, आज आपको पहले दिन आपको ध्यान देना है। लोग क्या करते हैं, कस्टमर आ गया, ऑर्डर आ गया, पैसे आ गए, कस्टमर को छोड़ देते हैं बिकॉज दे थिंक माई शिपिंग पार्टनर और डिलीवरी पार्टनर विल टेक केयर ऑफ इट। बट वो तो प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए है, आपका कस्टमर तो आपका है। सो यू नीड टू इंश्योर कि आपके कस्टमर सपोर्ट आपका कितना स्ट्रांग है। बिकॉज यूएस में एक चार्जबैक अगर आपके वेबसाइट पे होता है, विच मीन्स आपके पेपाल को पता पड़ता है कि यू आर डूइंग समथिंग फिशी। आपके कस्टमर को आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं या रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आपके पेपाल अकाउंट पे अगर मल्टीपल चार्जबैक होते हैं तो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और पेपाल उसके बाद शायद आपको अलाउ ही ना करे। आपके आईपी से डिटेक्ट कर लेगा, आपके कंप्यूटर से डिटेक्ट कर लेगा, वो आपको कोई अकाउंट भी क्रिएट नहीं करने देगा पेपाल के ऊपर उसके बाद। सो यू विल बी कंप्लीटली ब्लैकलिस्टेड एंड योर बिजनेस विल बी जीरो, बैक टू जीरो। सो आपको ये सारी प्रैक्टिसेस रखनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिकन मार्केट, यूएस मार्केट अलग तरीके से डील करता है, इंडियन मार्केट अलग तरीके से डील करता है। सो अगर आपका, ये बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूँ जितने भी लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, इफ योर इंटेंशन इज क्लियर कि भाई आई वांट टू हेल्प माय कस्टमर, मनी इज बाय प्रोडक्ट, अगर ये चीज अगर आपको समझ में आती है, then you can win this game. Otherwise, if you are here just to make money, this is not business for you. Right. And last thing is testing. जैसे हमने बताया कि क्रिएटिव प्रोडक्ट्स, वीडियोस, ऑप्टिमाइजेशन, आपके सोशल प्रूफ, आपके क्राउजल एड, वन प्रोडक्ट एड, वीडियो एड, these all are testing, but it depends on आपकी ऑडियंस के ऊपर, आपके प्रोडक्ट के ऊपर, because sometime there is no formula। ऐसा नहीं है कि ये करोगे तो ऐसे ऑर्डर आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इट इज ऑल टेस्टिंग। सो वो टेस्टिंग आपकी लाइफ लॉन्ग चलने वाली। इट इज नथिंग लाइक कि एक बार टेस्टिंग कर दी, वो प्रोडक्ट 6 महीने पहले तो चल रहा था अभी क्यों नहीं चल रहा है, या 1 महीने पहले तो चल रहा था अभी क्यों नहीं चल रहा है, वो शायद इस बार नहीं चलेगा बिकॉज इस बार उसका फेसबुक का एल्गोरिथम अलग है या गूगल एड में कुछ चेंज हो गया है। सो यू नीड टू प्ले and improve again and again, and you cannot depend on one source of traffic, so you have to test multiple traffic as well. So this is my last point in terms of, these are the last ये 10 पॉइंट हैं जो मैं इंश्योर करता हूँ अपने सारे बिजनेस के अंदर बहुत स्ट्रिक्टली। बाकी की जो चीजें हैं जो मतलब समझिए वो ऑफलाइन है, ऑफलाइन में बहुत सारी अलग चीजें होती है जिनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा यहाँ पे, बिकॉज उसको एक्सप्लेन करने के लिए और 2 घंटे लगेंगे। But I hope you understand this. Absolutely perfect. So कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहूंगा, ज्यादा नहीं बताना। कुछ हमारे स्टूडेंट है कम्युनिटी में। आई थिंक अगर आप किसी को अगर दिख रहा होगा, इनका 13 दिन में द स्टोर वेंट क्रॉस 1 लाख रुपीज सेल्स इन इंडिया। Lovely. दिस इज महेंद्र। इनका लंबा वीडियो है, मैं वीडियो प्ले नहीं करूंगा ज्यादा, किसी को देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। बट इनका स्टोर 13 दिन में हमारे साथ एज अ स्टूडेंट एनरोल हुए थे। 13 दिन में वो उन्होंने अपना स्टोर को स्केल करके 1 लाख का ऑर्डर पहुंचा दिया, एंड राइट नाउ ही इज अर्निंग समवट मंथली 10 लाख रुपीज ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया। Excellent. सो यहाँ पे एक हैं वृंदा, शी इज फ्रॉम मुंबई। ये ऑलरेडी फैशन और गारमेंट इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से काम करती हैं। ये मैम जो हैं वो हमारे साथ आई थी, इन्होंने भी एनरोल किया और इनका आई थिंक 3 दिन में उनके 16,000 तक के ऑर्डर आ चुके थे, और 1 वीक के बाद वो कुछ 50,000 42,000 के आसपास क्रॉस कर दिया था। इन्होंने बहुत अच्छे से एक लंबा वीडियो बनाया, टेस्टिमोनियल वीडियो बनाया, जो दिया है वो मैं प्ले नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोगों को बोरिंग हो जाएगा यहाँ पे। अगेन कुछ स्टूडेंट फीडबैक्स हैं। सो गाइज आई वांट टू नो, अगर आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो वो मैं आंसर करना चाहूंगा। आई जस्ट टेक आप एक इसको हम आप और मैं पूरा स्क्रीन पे आ जाते हैं। स्क्रीन शेयरिंग को बंद कर देते हैं।
Yeah, so guys, we'll be able to take 5 questions before we wrap it up because कुछ मेरे पास और announcements हैं आप लोगों के लिए. तो we'll be able to take 5 questions. So I'll take. Payments are 100% safe. Payment में problem नहीं होता कोई. हाँ, तो इन गौतम जी की वेबसाइट वगैरह हम शेयर करेंगे अभी आपके साथ. सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपको ईमेल भी करूंगा हाउ यू कैन गेट इन टच विद देम. Amazon store versus Shopify. Very good question. Shopify is a self-driven website because वो आपका अपना store है. Amazon is a third-party platform. वहाँ पे आप as a seller, as a vendor बन सकते हैं. But आपके Shopify में आप खुद ही drive कर रहे हो आपके store को. So completely different model है दोनों. But if you are expecting कि भाई मुझे what is profitable, अगर आप ये बात जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, Shopify में आपके जो एड्स को पैसे खर्च होते हैं वैसे ही Amazon में Amazon का अपना प्लेटफॉर्म का मार्जिन होता है, प्लस आपको वहां पे भी प्रमोशंस करना होता है. सो अल्टीमेटली इट इज इक्वली एक्सपेंसिव, बट इफ योर प्रोडक्ट इज प्रॉफिटेबल, आपकी जिसमें मार्जिन अच्छी है, तो आई वुड रिकमेंड गो विद बोथ द प्लेटफॉर्म एज अ. ग्रेट आंसर. मोहित जैन इज आस्किंग कि कुछ महंगा प्रेशियस आइटम, प्रेशियस ज्वेलरी वगैरह भी बेच सकते हैं इस पे? जी, ज्वेलरी बहुत अच्छा चलता है. स्पेशली अभी one of my known friend, he was selling his jewelry from one of the Bombay based company. उनको हेल्प कर रहा था प्रमोट करने में, एंड during this lockdown they have sold worth of 7 to 8 lakhs rupees of jewelry, sorry 70 lakh of rupees of jewelry. और वो भी सीधा फेसबुक एड के थ्रू उन्होंने अपने प्रोडक्ट को स्केल किया, और सारे के सारे ऑर्डर प्रीपेड थे, नो सीओडी. Lovely. Food products. फूड प्रोडक्ट्स इज अ चैलेंज बिकॉज इंडिया में डिलीवरी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिकॉज समटाइम अगर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें प्रिजर्वेटिव है और वो 2-4 दिन 10 दिन अगर डिले हो जाए तो चलता है, तो प्रॉब्लम नहीं है फिर भी, बट उसको डिस्पैच करना, लेके जाना थोड़ा चैलेंज है. बट अगर आप ऐसे लोकल एरिया में जैसे सेल करो, फॉर एग्जाम्पल मैं अहमदाबाद में रहता हूँ, मेरे पास स्टॉक अहमदाबाद में ही, और मैं अहमदाबाद में ही सप्लाई करना चाहता हूँ, जहाँ पे मेरा बंदा जाके दे सकता है या किसी को मैं पार्टनर कर लूँ, तो then it is very much doable because food products are the most consumable, सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट होते हैं. अच्छा, तो अगर आप डिलीवरी है और अगर आप कोई चीज है जो जल्दी पहुंचा सकते हो, what about food, like you know real food, like 3 दिन पहले सैंडविच ऑर्डर किया था, क्या हुआ उसका? ऐसा तो नहीं होगा. आपका सामने सिंपल एग्जांपल है स्विगी इज अगेन ई कॉमर्स. श्योर. जोमेटो इज अगेन ई कॉमर्स. वो क्या कर रहे हो आप? अल्टीमेटली पैसा ही दे रहे हो ना, वो फूड बाय करके लेके आ ही रहे ना हमारे लिए. सो मैं कुछ हमारे क्लाइंट्स थे जिनके साथ मैं काम करता था, मैं बता दूं, उनके पास रॉ हनी वो बनाते थे, कुछ विटामिन्स कुछ बनाते थे, कुछ ऐसी जड़ी बूटियां वाले प्रोडक्ट्स बनाते थे, जो कुछ फार्मा और न्यूट्रास्यूटिकल के कुछ प्रोडक्ट्स थे जो उनके पास, एंड वी टेस्टेड दोज प्रोडक्ट्स एंड दैट वेंट वेरी वेल ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, बिकॉज अभी सबको इम्यूनिटी सिस्टम इंप्रूव करना था, बहुत सारी चीजें करनी थी. सो वो प्रोडक्ट्स इतने अच्छे गए और बहुत सारे ऑर्डर्स आए. सो इट डिपेंड्स कि आप कितना ज्यादा ट्रेंड को कैपिटलाइज कर सकते हो, क्या कितना इनोवेटिव आप सोच सकते हो, आप मार्केट की नीड को क्या आप एड्रेस कर सकते हो, वो है विनिंग प्रोडक्ट. सो विनिंग प्रोडक्ट अगर आप पूछोगे किसी को कि है सब कुछ ई कॉमर्स में नहीं बिकता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत बिकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड विनिंग प्रोडक्ट. और विनिंग प्रोडक्ट का मतलब यही है कि आप मार्केट की नीड समझो, ट्रेंड को समझो, एंड यू कम अप विद द प्रोडक्ट. सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बाकी लोग पूछ रहे हैं कि सर्विस इंडस्ट्री, मैं कोचिंग प्रोग्राम्स बेचता हूँ या अपनी कंसल्टिंग बेचता हूँ 4 घंटे 5 घंटे, वो भी हो सकता है? वो तो सर आप ही ज्यादा बेटर आंसर कर पाएंगे. नहीं, आप अपने एक्सपीरियंस में इतने सारे स्टोर्स आप कर रहे हैं, वो भी कर सकते हैं. डेफिनेटली कर सकते हैं. स्कोप तो हर चीज का ही है. जैसे मेरा 14 तारीख को एक वेबिनार है, ठीक है, 8:30 बजे एक वेबिनार है 14 तारीख को, जहाँ पे मैं ई कॉमर्स सिखा रहा हूँ. ऑलरेडी बहुत सारे लोग एनरोल्ड हो चुके हैं हमारे वेबिनार में, एंड उस वेबिनार 4 घंटे का वर्कशॉप होता है, कंटिन्यूस 4 घंटे लंबा वर्कशॉप होता है, जिसमें मैं सारी चीजें डिटेल में बताता हूँ, लाइक प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स देता हूँ कि क्या प्रोडक्ट, क्यों ये प्रोडक्ट लिया मैंने, क्यों वो प्रोडक्ट रिजेक्ट किया मैंने, और मेरी एड कैसी होती है, मेरे कस्टमर कैसे होते हैं, कस्टमर की कंप्लेन क्या होती है, मेरी वेबसाइट पे पॉलिसी में क्या लिखता हूँ, एवरीथिंग इज कवर्ड अंडर. वेबिनार को कैसे अटेंड कर सकते हैं हम लोग सारे आए अगर आपकी ऑनलाइन मेरा एक इसमें क्या बोलते हैं, ये वेबिनार जाम का एक लिंक है,
वो मैं शेयर कर दूंगा, या फिर मेरी वेबसाइट पे कोई जाएगा तो वहाँ पे एक व्हाट्सएप क्लास का एक पेज बना हुआ है, डिफॉल्ट पेज मेरी वेबसाइट का वही है, वहां से कोई भी अगर ईमेल आईडी और वो डालेगा तो वो मेरे तो आपकी वेबसाइट एक बार फिर बता दीजिए, बिकॉज आई थिंक मेनी पीपल वुड लाइक टू कम फॉर दैट 4-hour webinar to understand how this e-commerce thing is going to work. हाँ, सो लेट मी, अगर शेयर कर पाऊँ मैं आपको, सो दिस इज मेरी वेबसाइट का नाम है gautamkalal.com, अगर everybody can see. Yeah. So, ये वेबसाइट में आप जाएंगे तो आपको इस सिंपल ये पेज दिखेगा, जिसमें ये फॉर्म है जिसमें नेम और ईमेल आईडी डालना है, एंड देन यू विल बी गेटिंग एक्सेस टू माय व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है. एट द सेम टाइम यहाँ पे बिल ने लिखा हुआ है कि वंस यू आर साइंड अप प्लीज चेक योर ईमेल फॉर मोर डिटेल्स. सो आपको ईमेल आएगा, उस ईमेल में आपको हमारे ये वेबिनार जाम का एक लिंक मिल जाएगा, प्लस व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, प्लस फेसबुक का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, वो सारे लिंक मिल जाएगा, सो दैट पीपल कैन स्टे कनेक्टेड. एंड वट एवर अपडेट्स लाइक कुछ नई चीजें आती है वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ, एंड वहाँ से फिर हमारी वेबिनार्स की डेट, टाइमिंग वगैरह सब असाइन हो जाती है. Lovely. I'm sure many people would like to come for this webinar, ताकि हम exactly देखें आपने जो questions बताए और and all of that. So awesome. So guys, our 5 questions are over. Can we all say thank you Gautam for taking the time out? बहुत देर से हम इसको plan कर रहे थे to be able to make this happen. In fact, I want to thank each one of the member who is sitting in this webinar. एंड स्पेशली सर आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद है, बिकॉज मैं आपसे काफी टाइम से कनेक्ट करना चाह रहा था, एंड इवेंचुअली दिस इट हैपेंड, कनेक्ट सडनली इट हैपेंड, एंड हम लोग आज बात कर रहे हैं. वो आपकी सारी मेहनत, आप कुछ कर रहे थे, आपने कुछ आपका, मैंने एकदम से आर्टिकल या कुछ देखा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया, उसी टाइम मैंने रक्षिता को ईमेल किया, मैंने कहा आप गौतम जी से पूछो अगर वो टाइम निकाल सकते हैं, तो फिर एकदम से आपका जवाब आया, एंड दैट्स हाउ वी सेट इट अप. करेक्ट. थैंक यू सो मच. एंड एक लाइन बोलना चाहूंगा. Sure. See, this is a really tough time for many of us and all of us, मैं तो बोलूंगा, because जो सिनेरियो चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, ये सब कोरोना वगैरह सब चल रहा है, and everybody going through some of problems, ये सब हुआ है. उसके बावजूद भी I would appreciate everybody कि भी आप यहाँ पे हैं, and this says, इसका मतलब ये है कि we are not driven by the fear or these kind of problems, but we are driven by the passion, the data, and the digital. Right. Thank you, Gautam. All the best. Guys, can we all give a big Internet Moguls, big thank you to Gautam before he leaves in the comments, please. Awesome. Yes. And thank you, Gautam. Thank you so much. मेरे links यहाँ पे हैं. Anybody want to join? They can join. Bhaskar has taken the link and we'll be putting it on the WhatsApp group. We'll make sure that हम लोग फुल फोर्स में आपके वेबिनार पे आएंगे सब लोग. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे. थैंक यू. आपको भी. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. You make me win every way. You show